मैं इतना पेरेंट से एक ही क्वेश्चन हमेशा पूछती हूँ मेरे पेरेंटिंग सेशन में कि आपको कम से कम दिन में आप ये बताओ कि कितनी बार इंस्ट्रक्शन देते हो और प्यार कितनी बार करते हो। तो जब पेरेंट्स ना बहुत ऑनेस्टली सोच के बताते, बोलते 50-60 बार तो दिन भर में हम इंस्ट्रक्शन देते, बैठा कैसे है, खाना कैसे खा रहा है, पानी की गिलास कैसे रखी, बुक्स कैसे रखी, मार्क्स कम क्यों आए, पढ़ा क्यों नहीं, लेट क्यों उठा, टीवी क्यों देख रहा है, मोबाइल क्यों चला रहा है। सिंस फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट टाइम सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स। कोटा में बहुत सारे बीच में इंसिडेंट्स होने लगे हैं जब बच्चे प्रेशर की वजह से सुइसाइड तक सोचने लगे हैं और केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। बट हर चीज़ में ना एक फैक्टर कॉमन था वहाँ पे कि कोई भी बच्चा जब ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाते थे ना, वो कुछ अगर नोट भी लिखते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ लिखते हैं, सॉरी मम्मी पापा। बेसिकली अगर अपन उस जनरेशन की बात करें कि सर वो उस समय सिर्फ 15-16 साल के होते हैं। यस 15-16 साल में उन्हें मालूम नहीं कि दुनिया क्या है, सोसाइटी क्या है। उनकी सोसाइटी और उनका एरिया सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स, बस वहीं तक रहता है। सॉरी मॉम डैड क्यों लिखते हैं वो? क्योंकि जाने अनजाने पेरेंट्स कई बार बोलते हैं बेटा तुझे कोटा भेज रहे हैं, तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है। यस बच्चों को इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, उनको एक हक चाहिए। Hi, this is Indranil and you are watching the Spotlight Beyond Profession and welcome back to our channel. And today in our channel we are having a podcast with Dr. Ira Bapna. If I talk about little bit about Dr. Ira Bapna, she is the director and professor in Maharana Ranjit Singh College of Professional Science, Indore. Not only so, she is also an academic counselor. She also works as parenting coach and career counselor too. So in this podcast, we'll try to explore all her role in bits and pieces and we'll try to understand the role of the right kind of parenting. And at the same time, we'll try to know about her views about the present educational system in our country. So please watch this podcast till the end so that you can have a lot of insightful things in this podcast through which you can learn multiple things. And before that, I would like to request you to please subscribe our channel so that you can have all the updates from our end at the right time and right moment, which will help you in getting yourself more wiser little bit. And please comment on the comment section so that we can also understand what are the things we are doing right and where we need to get improvement from our end as well. At the same time, I would like to request you that we have another channel that is related to the business newses by the name of TSBP News. So also please subscribe this channel TSBP News so that you can have all the business related news Monday to Friday at 7 p.m. and 9 p.m. in the form of business bites and quick bite. So please watch the podcast till the end and just let us know what is your views on this podcast. So welcome to our channel and welcome to our show, and first of all thank you very much for giving us your time. Before we deep dive into our podcast, I have two disclaimers. Number one disclaimer is that my name is Indranil, so I am a Bengali. So whenever I will start speaking Hindi, you can laugh at me, I don't mind. And secondly, in this entire podcast, if I'll be asking anything what you don't want to address or don't want to answer, you can directly say no. There is nothing like you need to avoid anything. Because our podcast is completely uncensored, unfiltered and unscripted. So again, thank you very much for joining our show. And first of all, we just want to have a brief introduction of yours, that what is the base from where you started, and then we'll be going further about all your expertise and we will discuss in details. So please give us a brief introduction about yourself first. First of all, thank you, Indranil. It's my pleasure to be here, and I need to raise so many issues, and I think this is the right platform for me. Truly. Basically, myself, Dr. Ira Bapna, director at Maharaja Ranjit Singh Group of Institutions, Indore. And I started my journey from Holy City, Ujjain. My whole education, MCOM and my PhD, both were there from Ujjain. And I did my MBA from IMS Indore. And my professional journey started from Ujjain only,
Before my marriage, I did work from 1998 to 2000 at Ujjain, Okay. and then I shifted to Indore. Until that, I'm here. You are working as a parenting coach as well. Yes. So मैं उसमें भी कुछ एड्रेस करना चाहता हूँ. So फर्स्ट ऑफ ऑल अभी की जो पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग का मतलब क्या है? मतलब व्हाट पीपल अंडरस्टैंड अबाउट पेरेंटिंग, बिकॉज पहले के ज़माने पेरेंटिंग नामक कोई शब्द नहीं हुआ करता था. इट वाज ऑल अबाउट बच्चा है, उसको अपने हिसाब से बड़ा करना है, क्योंकि हर बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता है उसका पेरेंट्स कौन होंगे. हर बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता है वो कहाँ पैदा होगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा, सर्कमस्टेंसेस कैसे होंगे. बट उसकी अपब्रिंगिंग डिपेंड करता है कि कहाँ और किन के संगत में वो बढ़ रहा है. बिल्कुल. So what is your point of view on parenting and what that means actually in today's time? पेरेंटिंग मतलब मैं सबसे पहले ये बोलूँगी इंद्रनील कि जैसे बच्चा पैदा हुआ है, आपका भी बर्थ हुआ है बीइंग अ पेरेंट. Yes, true. राइट. तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, आप भी उसके साथ ग्रो कर रहे हैं. Mm-hmm. हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो सबसे बड़ी भूल होती है, हम लोग जब बड़े हुए ना, तो हम लोग एक या दो भाई बहन बहुत रेयर केसेस में होते थे. और हमारे पेरेंट्स की जॉइंट फैमिली हुआ करती थी. तो जॉइंट फैमिली में हमारे पेरेंट्स को पता नहीं होता था कि मेरे बच्चे ने आज खाना खाया या नहीं खाया. दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट. और माँ भी सोचती नहीं थी खा लिया होगा, इतने सारे लोग हैं. तो हम लोग जो एक हमारा जो अपब्रिंगिंग हुआ, हम बिल्कुल नेचुरली अपब्रिंगिंग हुआ. हम लोग बिल्कुल स्ट्रगल भी किया, हमने धूप देखी, बारिश देखी, ठंड देखी, हवा भी महसूस करी. बट राइट नाउ एक या दो बच्चा होता है, उनको हम सब चीज़ों से कवर करके रखते. मेरे बच्चे को धूप न लगे, बारिश भी न लगे, ठंड की हवा तो लगनी ही नहीं चाहिए. एंड इस वे में जो हम ग्रो करते हैं, तो बच्चा जैसे ही बाहर निकलता है ना, तो जरा सी धूप में झुलस जाता है. आपने देखा होगा, जरा सा हवा पड़ती है बच्चा गिर जाता है. एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ये मैं बोलूँगी पेरेंटिंग इसलिए रिक्वायर्ड है कि हम ओवर पॉजेसिव है. जो हमें नहीं मिला वो हम बच्चों को देना चाहते हैं. What is the difference between this possessiveness and pampering? Yes. Basically both are wrong. True. पॉजिटिवनेस तो यही है कि हम जो चाहें वैसे ही करें और हमारी आंखों के आगे होना चाहिए. एंड पैम्परिंग इज लाइक हमें कई बार बच्चों की नाजायज डिमांड को भी यस कर देते हैं. जो बेसिकली आज तो इट इज़ ओके, बट लॉन्ग रन में वो उनके लिए गलत है, और उनके साथ साथ पूरी फैमिली, और वो उनकी लाइफ को रुइन कर देती है. बट वो हमें आज समझ नहीं आता. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि बचपन में एक छोटी छोटी सी आदतें, हमें लगता है क्या हो गया, अगर हमने आज इनकी जिद पूरी कर दी तो कोई बात नहीं, यू कैन डू. क्योंकि बचपन में उनकी जिदें बहुत छोटी छोटी होती हैं और आपकी कैपेसिटी में होती है. तो आपको लगता है यस वी कैन डू इट. एक टॉय तो मांगा है, एक चॉकलेट तो मांगी है, ठीक है 200 रुपये की चॉकलेट है, वी कैन गिव. यार टीआई गए ना, 1000 रुपये का हम कोई टिकट ही तो लेना है प्ले जोन का. इट्स बियरेबल. बट आज आपके लिए बियरेबल है. बट जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, उसकी डिमांड्स जिस तरह से रेज होगी, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, जिस तरह से उसने देखा देखी उसकी इच्छाएं बढ़ेंगी, वो चीज़ उसकी लाइफ, आपको तो खैर उसकी डिमांड्स फुलफिल करने में भी प्रॉब्लम होगी, बट वो डिमांड्स उसकी लाइफ को एग्जैक्टली रुइन कर देंगी, क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में ना नहीं सुना है. ट्रू. एंड दैट इज पैम्परिंग. बट अनदर प्रॉब्लम इज़ कि जब ये बच्चे, उनके जो दोस्त होते हैं या उनको जो स्कूलिंग होते हैं, जब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भी सेम चीज़ें देख रहा है वो दूसरों के पास, तो उसमें एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है कि उनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है. Yes. सो अगेन दे विल बी सेइंग दैट. और पेरेंट्स में भी ये एक ईगो इशू है. अगर उनके पेरेंट्स दे रहे हैं तो हमें भी देना है, बिकॉज वी नीड टू बी इक्वल इन द स्टेटस. Yes. सो हाउ यू कैन मैनेज दैट, मतलब हाउ यू विल बी एड्रेसिंग दिस इशू. मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगी. True. मेरी लाइफ का है. बेसिकली आई डोंट हैव एनी इश्यूज, बट मेरी भैया भाभी जिस घर के सामने रहते हैं, तो मतलब सेम फ्लोर हम लोग शेयर करते हैं. तो वो दोनों बच्चे जस्ट लाइक मेरे, बिल्कुल मेरे से सबसे ज़्यादा, उनकी पेरेंट्स से भी ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा मिले हुए हैं. तो उनका जो छोटा वाला बेटा 5 या 6 ईयर्स का ओल्ड होगा, मेरे साथ कहीं मार्केट गया था. मैं, मेरे हस्बैंड और वो, थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे कहीं मिलना था. एंड दे बोथ वर सिटिंग इन द कार. मैं आई तो बोली, बुआ आपने बहुत वेट कराया, मुझे आज किंडर जॉय दिलाना. ये बात हो गया से 9-10 साल पुरानी. और तब किंडर जॉय का प्राइस था 35 रुपीज़, दैट आई नो. तो मैंने बोला ओके. मेरे हस्बैंड बोले नहीं, किंडर जॉय तो मैं नहीं दिलाऊंगा. मैंने बोला क्यों, दिला देते ना हम. बोले नहीं ना. मतलब भाभी क्या बोलेंगी. बोले नहीं कोई इशू नहीं है, आई विल टेक केयर ऑफ. मतलब ओके फाइन.
मैं चुप रही। उन्होंने एक ही बात बोली, बेटा चॉकलेट तो तुम्हें आज 10 रुपीज़ वाली मिलेगी। बोले नहीं मामा, मुझे तो किंडर जॉय चाहिए। बोले तुम सोच लो, 10 रुपीज़ तुम्हारा बजट है, उस मैं किंडर जॉय तो नहीं दिलाऊंगा। बोले ओके, कुछ नहीं हुआ, टेंट्रम्स दिखाए। एक 6-7 साल का बच्चा टेंट्रम्स दिखाएगा, कार के पीछे धम धम शुरू, रोना शुरू, सेट फेसेस शुरू, गुस्सा दिखा रहा है, एंगर। घर के कॉर्नर आया, मेरे हस्बैंड ने बोला सोच लो चलें क्या शॉप, 10 रुपीज़ वाला चॉकलेट। बोले नहीं मामा, आई वॉन्ट किंडर जॉय। रोना शुरू। बोले कोई बात नहीं। घर के नीचे जब गाड़ी पार्क होने लगी, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हमसे ज़्यादा। बोलने लगा, उसको लगा कि 10 रुपीज़ वाला भी जा ही रहा है ना, तो बोले ओके 10 रुपीज़ वाली दिला दीजिए। उस दिन 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क दिलाया, घर लेकर आया। 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने बोला चलो बाजार चॉकलेट लेकर आते हैं। जैसे ही चॉकलेट लेने गए, उसने फट से बोला आज मैं 10 रुपीज़ वाला 5 स्टार लूंगा। ही सेट द बाउंड्रीज कि मेरा लिमिट 10 रुपीज़ का है और मेरी बजटिंग मुझे 10 रुपीज़ में करनी कि व्हाट आई वांट टू परचेज। उस दिन मेरे हस्बैंड ने उसे किंडर जॉय दिलाया। बोले नहीं, आई वॉन्टेड टू मेक हिम क्लियर कि जब तुमने जो डिमांड किया है उसी टाइम पूरा होगा ज़रूरी नहीं है। ही शुड बी वेरी मच क्लियर कि लाइफ में NO नो होता है। एंड बीइंग अ पेरेंट्स हम लोग बहुत क्लोज है। बच्चे ने अगर हमसे नो सुन लिया ना तो लाइफ में किसी की भी नो सुन सकता है, कहीं का भी रिजेक्शन फॉलो कर सकता है। और कभी भी वो इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेगा। उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो ज़रूरी होगा वो मुझे दिला देंगे, बट आई नीड टू वेट। आई कैन नॉट डिमांड एनी टाइम एनीवेयर। What do you understand about being disciplined in terms of when they are growing up? Because discipline एक बहुत बड़ा दायरा है। हम डिसिप्लिन को कभी कभी पंक्चुअलिटी के साथ मिसमैच कर लेते हैं, बट डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन, उसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं। पंक्चुअलिटी उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। सो हाउ मच डू यू थिंक दैट डिसिप्लिन प्लेज अ बिग रोल in terms of creating the base of any kid? Yeah, it plays a vital role. Basically, discipline means everything, na? Respecting your parents. Yes. How to talk with your elders, how to talk with your younger ones. Yes. Need to share. Need to care. Yes. Everything is a part of discipline only. How to keep your belongings. These are all a part of. And being a parent, we should nurture all such kind of activities and qualities since from childhood. बच्चा छोटा रहता है ना, वो 3 साल का होता है, चलने फिरने लगता है, हम उसको सिखा सकते हैं कीप योर प्लेट देयर, खाना खाया कीप योर, पानी पिया कीप योर ग्लास देयर। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट उसने उस समय सीख ली ना तो वो बड़ा भी होगा ना तो अपने सामान को बहुत नीट एंड क्लीन रखेगा। क्या अभी की सोसाइटी में आपको ये नहीं दिखता है कि हर बच्चे के पीछे एक मेड होते हैं जो दीदी प्लेट रख दीजिए या दीदी पानी दे दीजिए, एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो मोटिवेटिंग इन दैट वे एज वेल, दे आर ऑल्सो फीलिंग दैट इट इज़ ए स्टेटस सिंबल। सो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाता है तब तक उसका पेरेंटिंग अलग टाइप का होता है, राइट। जब वो स्कूल में पहुंच जाता है तब उसकी पेरेंटिंग अलग टाइप के हो जाते हैं। सो बिफोर स्कूल अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट शुड बी द बेसिक थिंग्स दैट एवरी पेरेंट शुड मेंटेन फॉर देयर ओन सेक, नॉट फॉर एनीबडी, बिकॉज दे आर ग्रोइंग अप, दे आर किड ओनली। सो वो कैसे बना रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उनका फ्यूचर कैसे होने वाला है, ऑब्वियसली। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट 2, 3, 5 थिंग्स, वॉट एवर यू वांट टू एड्रेस, हाउ मेनी थिंग्स यू फील दैट ये तो मेंटेन करना ही चाहिए प्री स्कूल, एक पोस्ट स्कूल, आई विल आस्क यू लेटर ऑन। एक्चुअली एक श्लोक भी है, पंचवर्षाणि लालियेत, 10 वर्षाणि ताड़येत, तत्पश्चात मित्रवत आचरेत। 5 वर्ष तक उनका लालन पालन बहुत ज़्यादा प्यार से करें। ओके। 5 से 10 साल के बाद उनको जहाँ जहाँ डांट की ज़रूरत है आप डांटे भी। और 10 वर्ष 11 वर्ष का बच्चा जब एज क्रॉस कर लेता है तब उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करें। ओके। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। 5 साल तक बच्चा बहुत छोटा रहता है, उसे बहुत ज़्यादा लव केयर कंसर्न की रिक्वायरमेंट, कहते हैं ना बच्चा टच फील करता है। Yes. और आजकल की जो हमारे न्यू पेरेंट्स हैं वो लोग अगर अच्छे फाइनेंशियली दे आर साउंड तो वो लोग सोचते हैं एक एक बच्चे पे आप सही करें, 1 मिनट 2 मिनट सब होता है।
और वो बिल्कुल बच्चे को कब गोद में लेती उन न्यू मॉम्स जो होती हैं, जब बच्चे को फीड कराना होता है या बच्चे को जब थोड़ा सा फोटोग्राफी या थोड़ा सा शो करना होता है ना, तब बच्चा उनके लैप में आता है. अदरवाइज एक मेड पीछे चलती है. इवन आई हैव सीन इन थिएटर्स ऑल्सो कि पेरेंट्स आर वॉचिंग द मूवी एंड मेड बाहर बैठी हुई है बच्चे को लेके, मदर बीच में आके देख रही है या बीच में आके फीड करा रही है 4 months old. दैट आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स एंड आई वंडर कि ठीक है यार, आपने 2 साल आप पेरेंट्स बने हो तो आपको सेक्रीफाइस करना है. इट इज़ नॉट अ लाइफ कि आपने बच्चा पैदा कर दिया और आपका काम पूरा हो गया. आपने उसे ग्रो, आप इस दुनिया में लाए हो ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अर्ली एज में आपकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं तो यू नीड टू. आपके बच्चे को अभी सबसे ज़्यादा आपके लव केयर कंसर्न की ज़रूरत है. बहुत छोटा बच्चा है, 24 आवर्स में लव और ये पैम्परिंग, ये दोनों थोड़ा सा मिक्स मैच हो जाता है. मुझे ऐसा लगता है लव को लोग पैम्परिंग समझ लेते हैं, जहाँ पे डांटना लव में काउंट नहीं होता है, बट डांटना भी लव में काउंट हो सकता है अगर आप उस तरीके से करें तो. ऑब्वियसली पैम्परिंग मीन्स आप उनकी जायज नाजायज सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हो. एंड लव जब उसको मतलब वो गलत भी डिमांड कर रहा है ना, तो आप उसको प्यार से समझा रहे हो, डिमांड पूरी नहीं कर रहे हो. यू आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि ये ज़रूरी नहीं है. छोटा बच्चा है, रोता है कई बार, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा. आप उसको प्यार से समझाएं और फिर थोड़ा सा कभी स्ट्रिक्ट होना पड़े तो यू नीड टू, क्योंकि आप अभी उसकी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं. वो आगे कैसे जाएगा वो आप अभी बिल्ड कर रहे हैं. अभी हमको लगता है कि हमें जो नहीं मिला हम सब अपने बच्चे को दें. ये आपकी बहुत अच्छी फीलिंग है, बट ऐसा करने के प्रोसेस में हम कई बार अपने बच्चे की लाइफ रुइन कर देते हैं. हमें जो नहीं मिला हम अभी तो दे देंगे. बट मैं हमेशा, मेरा एक डायलॉग है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि योर पेरेंट्स आर योर ATM जस्ट फॉर 24 years. और ये ATM की वैलिडिटी 24 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी. बहुत ज़्यादा केस में तुम बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हो तो 27 years मैक्सिमम, एंड बियॉन्ड 27 years ये ATM बिल्कुल नहीं चलेगा. यू ऑट टू देन अर्न. और वो जब मार्केट में बाहर निकलता है ना, तब उसने कुछ सीखा नहीं होता है. कहते हैं ना 2 तरह के शेर होते हैं ना, एक सर्कस का और एक जंगल का. एक्चुअली आजकल के पेरेंट्स है ना सर्कस का शेर बना रहे हैं. वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता ही नहीं कि हम शिकार कैसे करें और खाएं कैसे. और जंगल का शेर है, वो जानता है कि अपना पेट कैसे भरना है. ट्रू. एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस. एक कॉमन चीज़ मैं और एड्रेस करना चाहता हूँ. मेजरली आज के तारीख में सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं एंड मेजरली बोथ आर वर्किंग होते हैं, राइट. सो इन दैट सिनेरियो ये एक और भी प्रॉब्लमेटिक है कि बच्चा अकेला रहता है एक मेजर समय में, जब वो किसी ना किसी को तो सुपुर्द करना है. अगर वो न्यूक्लियर है, माँ बाप कहीं और रहते हैं, वो अपने कामकाज के लिए कहीं और रहते हैं, हाउ दे शुड मैनेज सो दैट दे कैन एटलीस्ट मेंटेन their principle to their kids. They can at least transfer that much principle to their kids, which is very very essential because उनके जो रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, that should go on, that should transfer. So how they can do it when both are working? Yes, I've seen so many families जहाँ husband wife दोनों working होते हैं, and when they plan an issue, तो at that time husband या wife में से कोई एक sacrifice करता है अपने work को थोड़ा, जो मैनेज कर सकता है. यहाँ पे तो मैं लंबा डिस्कशन करना चाहता हूँ. यहाँ पे भी आजकल एक ईगो क्लैश होने लगा है. जो सेक्रीफाइस करते हैं लोग उनको कमज़ोर समझते हैं. सर मैं फिर वही बोलूँगी कि लाइफ हमारी है, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है. लोग क्या कहेंगे ना, ये सबसे बड़ा इस दुनिया का प्रॉब्लम है. लोग क्या कहेंगे, और इस लोग क्या कहेंगे को अगर आपने जीत लिया ना, तो आपने दुनिया जीत ली. मैं तो उल्टा ये करता हूँ कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 भी यही सोच रहे कि 4 क्या कहेंगे, वो 4 भी वही सोच रहे कि 4 लोग क्या कहेंगे. 4 है कहाँ ये नहीं पता, ये किसी पता को. नहीं है. वो कहते हैं ना कि आप किसी डॉक्टर क्या गए. एक मैडम केनाश्री हैं, अभी मेरे कॉलेज में आई थी, बहुत अच्छी पोएम उन्होंने 4 लोग पे लिखी, बहुत अच्छा बोला. डॉक्टर चड्डा को दिखाया तो लोग बोलेंगे कपूर को क्यों नहीं दिखाया, और कपूर को दिखाया तो ये क्यों बताया, वो क्यों नहीं बताया. क्योंकि लोगों को तो क्वेश्चन करना ही है ना. सर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग को आपने हटा दिया. बिकॉज लाइफ वर्क्स ऑन 2 प्रिंसिपल्स जो मैं पर्सनली बोलती हूँ, KFP एंड BFP. ओके. हमें अपनी लाइफ अपने अंदाज में जीनी है, हमें हमारे गोल्स अपनी तरह से अचीव करने हैं. बहुत फर्क पड़ता है, दैट इज BFP. Okay. लोग क्या कहेंगे
कुछ फर्क नहीं पड़ता KFP. True. So you need to decide where you want to go. एक छोटी सी कहानी है. लास्ट ईयर मैंने MyFM चैनल पे भी 15 दिन काउंसलिंग किया था स्टूडेंट्स का, बोर्ड स्टूडेंट्स का. Okay. तो तब भी मैंने उनको ये डर को हटाने के लिए ये बात बोली थी, क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर रहता है. Yes. तो मैंने कहा था कि एक बार मैं यहाँ नरेट करना चाहूँगी स्टोरी. Yeah, sure. एक छोटा सा गांव था, उसमें खूब सारे फ्रॉग्स थे. उन फ्रॉग्स ने डिसाइड किया कि एक टावर है, इस टावर की हम रेस लगाते हैं, जो सबसे पहले चढ़ेगा वो विनर होगा. बोले डन. नेक्स्ट डे सारे फ्रॉग्स आते हैं, रेस शुरू होती है. गांव के दूसरे लोग भी आते हैं देखने के लिए. एंड दे ऑल आर वायरस जस्ट लाइक, जो खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, पर जो आगे बढ़ता है ना उनको दोनों तरफ से पीछे से खींचते हैं. और उनके कान इतने तेज होते हैं कि कोई इनवाइट करे या ना कराए, विदाउट इनविटेशन पहुंच जाते हैं. तो वो एज अ वायरस आ गए थे. रेस शुरू होती है एंड एज यू नो ना, फ्रॉग कैसे क्लाइंब करते हैं, 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन. फ्रॉग ने अपना क्लाइंबिंग स्टार्ट करा. वो 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, थक रहे हैं, चढ़ रहे हैं, थक रहे हैं, चढ़ रहे हैं. नीचे से लोग चिल्ला रहे हैं जो देखने आए थे, अरे इतना बड़ा टावर तुम नन्हे नन्हे से मेंढक नहीं चढ़ सकते, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और हमारा भी. तुम्हें देखने बुलाया किसने? बट स्टिल यू आर हियर. धीरे धीरे इतना बोले, अरे इतना बड़ा टावर तुम नन्हे से मेंढक नहीं चढ़ सकते, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ. बहुत सारे फ्रॉग गिव अप कर गए. एक ग्रुप था चढ़े जा रहा था. अरे इतना बड़ा टावर तुम नन्हे से मेंढक चढ़ोगे तो सीधा ICU में जाओगे. देखो सारे इंटेलिजेंट फ्रॉग्स नीचे बैठे हैं, नीचे आ जाओ. सारे फ्रॉग गिव अप कर देते. एक नन्हा सा टाइनी सा फ्रॉग चढ़े जा रहा है. वो नीचे देखता है, फिर चढ़ता है, नीचे देखता है, चढ़ता है. अरे इतना बड़ा टावर तुम नन्हे से मेंढक नहीं चढ़ सकते, अब तुम नीचे गिरोगे तो सीधा वेंटिलेटर पर जाओगे. देखो सारे इंटेलिजेंट फ्रॉग्स नीचे बैठे हैं. वो फिर देखता है, फिर ऊपर चढ़ता है एंड शॉकिंगली वो फ्रॉग क्लाइंब कर लेता है. प्राइज सेरेमनी होती है, उससे पूछा जाता है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर रेस विनिंग. तो उसे एक बार पूछा जाता है, 2 बार पूछा जाता है, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स. वो आंसर नहीं देता है, बिकॉज दैट फ्रॉग वॉज डेफ. जिन्हें सुनाई देता था वो सारे डीमोटिवेट होकर नीचे बैठ गए. और उसे सुनाई नहीं देता था. उसे लगता, लोग कहते इतना बड़ा टावर तुम नन्हे से मेंढक चढ़ नहीं सकते. उसे लगता लोग कह रहे और ऊपर चढ़ो, और ऊपर चढ़ो, और उसने टावर क्लाइंब कर लिया. तो जब भी आपको लोग कुछ कहे ना, डेफ हो जाए, because it is your life. Yes. And you need to live your life on your conditions. But again, now coming back to that point, अगर दोनों में से कोई एक sacrifice भी करते हैं, 2 years, 3 years, then they can, जब उन्हें लग रहा है कि हमारे बच्चे को जो इस इनिशियल फेज में हमें देना था वो हमने दे दिया, अब वो प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट कर रहा है और धीरे धीरे वो अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलराइज कर सकते हैं. 8, 9, 10 ईयर्स तक आके फिर वो किसी घर पे जब वो बच्चा स्कूल से आता है तो एक मेड को रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे में जो बेसिक वैल्यूज़ इनकलकेट करने थे वो कर दिए हैं. एंड आजकल तो अगर दोनों पेरेंट्स जॉब में हैं तो घर में कैमरा एंड ऑल तो आजकल बहुत कॉमन है. दे कैन वॉच कि स्कूल से आने के बाद जो 2 या 3 घंटे का टाइम है उसमें हमारा बच्चा सेफ, सिक्योर और सही कंडीशंस में है. इसमें थोड़ा सा मदद अभी हमारा पैंडेमिक ने कर दिया है, बिकॉज अभी ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी आ गया, हाइब्रिड कल्चर भी आ गया है. रिसेंटली वी कवर्ड वन स्टोरी इन डिटेल that how much it is essential nowadays for every corporates and every company to keep this hybrid model for their employees. Otherwise they are also not getting, because now people have a work life balance and a lot of buzz around that as well. Yes. So maybe hybrid work can they do. But nowadays again it is been changing. अगर मैं पुणे की बात करूँ तो again now वर्क फ्रॉम होम. बट ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, दोनों में से किसी एक को थोड़े दिन तो सैक्रिफाइस करना जरूरी है, अदरवाइज वो फाउंडेशन बिगड़ जाएगा. यस सर, होता क्या है कि हम लोग ने देखा होगा कि आज आप लोग अपन किसी बुजुर्ग से मिलते हैं अगर 60+ वाले से, तो जनरली मैंने देखा 60% जो लोग होते हैं ना वो कंप्लेनिंग होते हैं. एंड दे आर कंप्लेनिंग लाइक बच्चे ध्यान ही नहीं रखते, बच्चे फ़ोन ही नहीं लगाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, USA क्या गए बिल्कुल भूल ही गए, उनको पता ही नहीं ये पेरेंट्स भी हैं, हमने उनको पढ़ाया, हमने उनको सब करा. मैं हमेशा बोलती हूँ, मतलब मैं जिनसे भी मिलती हूँ कि अंकल आंटी ये गलती आपके बच्चों की नहीं है. जब आपके बच्चों को टाइम चाहिए था ना, तब आप आपके क्लब्स, आपकी पार्टीज़, आपके सोशल फंक्शन, सोशल गैदरिंग्स में बिजी थे और आपका बच्चा घर पर था. वो पेरेंट्स को मिस किया.
आपने अपने बच्चे के साथ उस एज में जहाँ आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए वो आपने टाइम दिया नहीं, वो टाइम मिस हो गया. यू आर जस्ट लाइक एटीएम फॉर हिम और हर. आपके किड के लिए आप एटीएम हो, तो उसने आपको एटीएम की तरह यूज़ किया. आपने बोला नहीं नहीं बेटा यूएसए जाना है, वो यूएसए गया, कितना ओबीडियंट था, आपके कहने पे ही गया. अब आप कहते हैं कि वो कॉल नहीं करता, तो ऐसा बॉन्डिंग ही नहीं है. जब बचपन में उसने बोला मॉम आज मेरे पास रुक जाओ, तब आपकी किटी पार्टी होगी, तब आप रुकी थी. क्योंकि बच्चा जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट अपने पेरेंट्स से रेज करता है, जो इमोशनल रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और बच्चा जो एक बार वो मन में कर लेता है ना कि ये मुझे नहीं मिला, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है. Nowadays in the society we are living, वहाँ पे ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट हो गया है. किटी भी इम्पोर्टेंट है, सोशल गैदरिंग भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे को टाइम देना भी इम्पोर्टेंट है. हाउ टू बैलेंस आउट? जब बच्चा स्कूल जाता है ना, ट्राई टू कीप योर किटीज इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. यू डू योर किटीज. आपका बच्चा 3 बजे आता है ना, 3 बजे आप कोई भी आए, हम लोग भी अपने घर आते थे, आते से हमें अपने मम्मी को सुनाना पड़ता था, सब चैटर बॉक्स हो जाते थे. इन मैडम ने ये किया, इस फ्रेंड ने ये किया, आज मेरी बॉटल को ये हुआ, आज मेरा कॉपी का पेज फट गया. हम एक एक चीज़ एक सांस में सुना देते थे. और सुनाने के बाद हमें ऐसा लगता था कि हमें जन्नत मिल गई. घर पे मॉम दिख गई, सब कुछ हो गया. और आधे घंटे बाद अगर मॉम बोलती थी कि बेटा मैं मार्केट होकर आ रही हूँ, ओके नो इश्यूज, 1 घंटा हम फ्री हैं, हम खेलेंगे, उस समय चाहिए. वो एक बहुत टेंडर टाइम होता है. और ये मैं बोल रही हूँ कि बच्चा जब 14-15 साल का हो गया ना, तब उसकी वो रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रहेगी. बट जो इनिशियल ईयर्स है, राइट नाउ मैंने देखा अभी ये बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं ना 10th-12th के, तो उसमें भी कई बार जो न्यूक्लियर फैमिली के ओनली किड होते हैं, उनकी बहुत रिक्वायरमेंट है कि मेरा एग्जाम टाइम है, मेरी मॉम मेरे साथ रहे. एंड आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स जिन्होंने अपनी जॉब से 6 महीने का छुट्टी लिया है. इवन माई कजिन, मैंने एक दिन उसे कॉल किया कि मेरे कॉलेज में एक फंक्शन है यार, आई वॉन्ट यू बी एज अ जज. बोले सो सॉरी. बोले वाई? बोले यार उसका एग्ज़ाम से बेटे का. बोले एग्ज़ाम से तो ठीक है ना यार, वो पढ़ेगा, तुझे क्या है? बोले नहीं, मेरे बेटे ने मुझसे डिमांड किया था, मैंने 6 महीने को ऑफ लिया है एंड मैं पूरे टाइम उसके साथ रहती हूँ. वो पढ़ता है, मैं उसके बेड के पास बैठी रहती हूँ. वो कार रेस देखता है, मेरा इंटरेस्ट नहीं, मुझे उसके साथ कार रेस देखनी होती है. उसके साथ जब फ्री टाइम में पत्ते खेलना पड़ते हैं. बोले क्यों? क्योंकि बोले अभी सब फ्रेंड्स तो पढ़ रहे हैं ना, वो किन दोस्तों के पास जाएगा? अगर उसका फ्री रहना है, उसको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो मैं ही हूँ ना बिना इमीडिएट. सब फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, सबका टाइमिंग्स अलग है, वो कहाँ जाएगा? वो इस समय फिर लोनली फील करेगा. तो मैं भी पूरी कंपनी अपने बेटे के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को प्लान की, एंड दैट इज हेड्स ऑफ. बोले ये सिर्फ 6 महीने की बात है ना, 12th हो जाएगा, वो अपने करियर में चला जाएगा, आई एम फ्री अगेन. और 11th तक तो वो था, तब तक तो मैंने मेरी लाइफ लीड की है. जब आज मेरे बच्चे ने मेरे से 6 महीने डिमांड किए हैं, आई नीड टू गिव. वेरी ट्रू. नाउ वंस किड्स स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, अब उनका एक्सपोजर थोड़ा सा अलग लेवल पे हो जाता है. आपने घर पे कौन से माहौल पे पले बड़े हैं, आपका फूड हैबिट्स क्या है, देन इट डजंट मैटर. जब वो बाहर ये एक्सपोज होता है, फिर वो अलग टाइप के दोस्त बनते हैं, अलग टाइप के फैमिलीज से एक्सपोज होते हैं. देन कम्स की बर्थडे सेलिब्रेशन होना है, ये दिखावा चाहिए, यहाँ पे जाना है, इस टाइप का खाना खाना फैशन है, उनके पेरेंट्स ये देते हैं, हमारे पास ये क्यों नहीं है. देन हाउ टू एड्रेस दीज थिंग्स एट द इनिशियल टाइम, बिकॉज ये समय जब इनिशियल लेवल अगर निकल जाता है, देन फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल है. सो हाउ टू कंट्रोल एट द इनिशियल लेवल व्हेन दे गेट एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड एट द इनिशियल टाइम. बेसिकली पेरेंट्स को अपने बच्चों का एडमिशन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली स्कूल में कराना चाहिए. हमें आज लगता है कि नहीं, आई कैन पे द फी. तो मैं ये कहना चाहूँगी, सिर्फ फी सब कुछ नहीं होता है. ट्रू, वेरी ट्रू. बट आप आज सब इच्छाएं पूरी कर दोगे, बट जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा, उसे ब्रांडेड कपड़े चाहिएंगे, ब्रांडेड शूज़ चाहिएंगे, उसकी पार्टी फिर स्टारबक्स में होनी चाहिए क्योंकि उसके फ्रेंड्स की माँ होती. और इस जगह बच्चा गलत नहीं है, क्योंकि आपने उसको वो एटमॉस्फेयर दिया है. yes. आपने उसको वो एनवायरनमेंट दिया है. सो इट इज़ योर फॉल्ट. तो आप शुरू से ये सोचिए कि मैं अगर 100 रुपीज़ स्पेंड करने की मेरी कैपेसिटी है, तो मैं मेरे बच्चे का एडमिशन 70 रुपीज़ वाले स्कूल में कराऊंगा, क्योंकि मुझे उसकी डे बाय डे एज वाइज जैसे उसकी डिमांड्स रेस होगी, उसकी डिमांड्स रेस कर सकूँ. जो मेरा स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड के वहाँ पर भी बच्चे रहेंगे, तो उसकी भी डिमांड वही होगी जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ.
अगर आप अपनी कैपेसिटी से अपर साइड में जाओगे तो आप भी दुखी रहोगे, बच्चा भी दुखी रहेगा। यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि हाउ टू डिसाइड एंड सिलेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे उनके मुताबिक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। बिकॉज अच्छा स्कूल का परिभाषा क्या है, जिसका फीस ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, बिकॉज स्कूल बिकेम एन एमिनिटीज सेंटर, कि हमारे स्कूल के ये एमिनिटीज़ हैं। सो अभी ये अच्छा स्कूल का परिभाषा क्या है जो मेरी कैपेसिटी का है, बिकॉज स्कूल इज बेसिकली टू गिव बेसिक एजुकेशन फर्स्ट। सो नाउ व्हाट टू एंड हाउ टू एड्रेस दिस, हाउ टू सिलेक्ट। मैं एक बात कहना चाहूँगी इसमें कि बेसिकली अगर मैं फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ की बात करती हूँ, स्कूल में बच्चा स्कूल में बच्चा 6 to 7 आवर्स रहता है, नॉट मोर देन दैट। उसमें से 5 घंटा वो पढ़ाई करता है, क्लासेस, एकेडमिक्स। 1 या 1.5 घंटा होता है जो एमिनिटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, आधा घंटा उसका लंच ब्रेक होता है। इस 1 घंटे में एक उसका को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पीरियड होता है जिसमें कॉम्पिटिशन्स होती हैं हाउस वाइज, दैट इज़ कंपलसरी। उसके पास आधा घंटा बचता है, उस आधे घंटे में एमिनिटीज़ करनी। आपको लगता है कि आप स्कूल में ही भेजोगे और बाहर नहीं सिखाओगे तो बच्चा क्या स्कूल में स्विमिंग सीख लेगा? क्या बच्चा स्कूल में सारी चीज़ें पूरी परफेक्टली सीख लेगा? नॉट पॉसिबल। आई जस्ट से स्कूल में जा रहे हैं ना, थोड़ी बहुत एमिनिटीज़ नहीं भी होगी तो चलेगा। आपके बच्चों को सिखाना है एक राइट एज में, समर टाइम में आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप ऐसे स्कूल्स में एडमिशन ना कराएं कि जहाँ पर एमिनिटीज़ के नाम पर पैसा ज़्यादा हो। और उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो फ़ी चार्ज कर रहे हैं। बट अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे को ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। यू कैन प्रोवाइड देम, बट यू हैव टू थिंक वाइजली। एकेडमिक्स प्रायोरिटी है हमारी, तो हम एकेडमिक्स को चूज़ करें, दैट इज़ ट्रू। वहाँ की स्टडी पैटर्न को चूज़ करें। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी कैपेसिटी और आपका बजट, फिर आप जिस लेवल के स्कूल में जाना चाहे उस लेवल के स्कूल में जाएं। एमिनिटीज़ में फिर बोलूँगी कि सर हम हमारे बच्चे को कितनी भी एमिनिटीज़ में एनरोल करा दें स्कूल में, पर आपको बताऊँ कि बारिश के मौसम में स्विमिंग नहीं होता है। एक फॉर एग्जाम्पल, ठंड के मौसम में तो स्विमिंग बिल्कुल ही नहीं होता है, पानी ठंडा होता है, एग्ज़ाम टाइम में बंद हो जाता है। आप स्विमिंग के नाम पे पैसा दे रहे हो, एक्चुअली में स्कूल में बच्चा स्विमिंग कितने दिन करता है? रादर देन आप समर्स में 2 महीने का, आजकल तो हर छोटी छोटी सोसाइटी के आसपास स्विमिंग पूल्स होते हैं, आप आपकी ट्रेनिंग करवा दें। क्रिकेट कोचिंग होती है, फुटबॉल कोचिंग होती है, आप वो लगवा दें। रादर देन स्पेंडिंग एक्स्ट्रा अमाउंट इन द स्कूल्स ओनली, आप इसकी अलग से कोचिंग करवाएं ना। उससे उसके भी या उसके बराबर या उससे कम पैसे में आप पूरे 360 डेज बच्चे को सब सिखा सकते हैं, जो स्कूल में हार्डली वो 2 या 2.5 महीने सीखता है। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। एक चीज़ और बहुत कॉमनली देखा जाता है कि आज की तारीख में पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या करना है या उन्हें क्या बनना है। कभी कभी तो माँ बाप अपने सपने पूरा करवाते हैं उनसे कि तुम्हें ये करना है बिकॉज मैंने चाहा। सो हाउ यू फील एंड मतलब आप फेस करते होंगे ऐसे चैलेंजेस भी, ऐसे बच्चे को भी आप देखते होंगे। तो उनके दिमाग में क्या चलता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कैसे इसको बैलेंस आउट करते हैं और कैसे एड्रेस करते हैं? बहुत अच्छा इंसिडेंस है कि एक्चुअली ना पेरेंट्स को लगता है कि जो हमें, मैंने बताया ना, बार बार मैं कहती हूँ, जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चों को दूँ, और जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करें। यस। एक छोटा सा इंसिडेंस मैं नरेट करूँगी। हम लोग स्कूल से आते हैं, बच्चों का स्पोर्ट्स डे होता है, बच्चे रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पेरेंट्स बिल्कुल चीयर अप कर रहे हैं, यस कम ऑन बेबी कम ऑन, यू कैन विन, यू कैन बी इन टॉप 3, यू कैन बी इन टॉप 3, कम ऑन यू कैन विन। और बच्चा हार जाता है, टॉप 3 में नहीं आता है। एंड पेरेंट्स लाइक, मैंने बोला था ना थोड़ी सी मेहनत करता ना तो 3rd पोस्ट पे यहाँ खड़ा होता, उसे ट्रॉफी मिल रही होती। बच्चा इज जस्ट लाइक दिस। एक पेरेंट है, बच्चा 7th नंबर पे है, उसको जाकर हक करते, टाइट हक, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। व्हाई? आई एम 7th। सो व्हाट, तुमने 42 स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा है, 6 आगे हैं ना, थोड़े दिन बाद वो भी पीछे हो जाएंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, काइंड ऑफ एटीट्यूड। यस। थोड़े दिन बाद एक पीटीएम हुआ, स्कूल ने बोला कि हम पेरेंट्स के लिए ओपन हाउस है,
पेरेंट्स के लिए एक एक्टिविटी है, सारे पेरेंट्स रेस के लिए खड़े हैं, स्टूडेंट्स चीयर अप कर रहे हैं, कम ऑन डैड, कम ऑन, यू कैन विन, कम ऑन डैड, आपको जीतना है, मेरे डैडी फर्स्ट आएंगे, यस यू हैव टू विन। डैडी 40 साल के हो गए हैं, दौड़े को सालों बीत गया है, थोड़ा सा दौड़े हाँफने लगे हैं, बोले ये बच्चा बोल रहा है फर्स्ट आएंगे, यार इतना सा दौड़ने में तो मेरी सांस भर आई, कैसे फर्स्ट आऊंगा। डैडी हार गए। क्या डैडी, थोड़ा सा दौड़ते ना फर्स्ट आते। एट दैट मोमेंट दैट डैड रियलाइज कि मैं मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती बकअप कर रहा हूँ, वो वही करे जो वो कर सकता है और मैं भी वही कर पा रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा आपको आईना दिखाना ज़रूरी होता है। वेरी ट्रू। एक प्रॉब्लम जो आज की तारीख में दिखता है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कोटा की एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोटा में बहुत सारे बीच में इंसिडेंट्स होने लगे हैं जब बच्चे प्रेशर की वजह से सुइसाइड तक सोचने लगे हैं और केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। बट हर चीज़ में ना एक फैक्टर कॉमन था वहाँ पे कि कोई भी बच्चा जब ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाते थे ना, वो कुछ अगर नोट भी लिखते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ लिखते हैं, सॉरी मम्मी पापा। मतलब दे डोंट बॉदर अबाउट एनीबडी एल्स इन टूडेज टाइम, इन टूडेज जनरेशन। भले एज ए पेरेंट वो लोग सोच रहे हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बट पेरेंट्स डोंट बॉदर, दे आर ओनली बॉदरिंग अबाउट देयर पेरेंट्स कि उनको सॉरी बोलना है या उनके सामने मैं क्या हूँ। सो हाउ यू सी दैट दिस जनरेशन and how much they bother about society and how much they are self-centric in today's time? बेसिकली अगर अपन उस जनरेशन की बात करें, अभी सर वो उस समय सिर्फ 15-16 साल के होते हैं। Yes. 15-16 साल में उन्हें मालूम नहीं कि दुनिया क्या है, सोसाइटी क्या है। उनकी सोसाइटी और उनका एरिया सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स, बस वहीं तक रहता है। सॉरी मॉम डैड क्यों लिखते हैं वो? क्योंकि जाने अनजाने पेरेंट्स कई बार बोलते हैं, बेटा तुझे कोटा भेज रहे हैं, तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है। Yes. हमें नहीं मानो, हम इंटेंशनली नहीं बोलते हैं, हम इंटेंशनली नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं अनइंटेंशनली हैं, पर बच्चा तो छोटा है, उस पर स्ट्राइक करता है। बेटा हम तुम्हारे ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं, बेटा पैसे का ध्यान रखना है ना, तुम्हें कुछ बन के आना है, नहीं तो ये पड़ोस वाले शर्मा अंकल क्या कहेंगे। तो बच्चा पूरे टाइम वो परेशान है, ये शर्मा अंकल है ही क्यों मेरी लाइफ में, जो हमेशा वो क्या कहेंगे। और शर्मा जी का बेटे से तो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो आगे आ जाता है, वो नंबर ज्यादा ले आता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो शर्मा जी और शर्मा जी का बेटा उस बच्चे की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और प्रेशर किसने दिया? मॉम डैड ने दिया, और वो इनडायरेक्टली दिया। और फिर इनडायरेक्टली कैसे प्रेशर हो जाता है? देखो भैया, हमने तो इसने बोला कि यहाँ कोचिंग कराओ, हमने बोला वहां कर, मैं ऐसे रहूंगा, वो ले, हमने तो इस पर पूरा खर्चा किया है। आपने बहुत इनडायरेक्टली, बहुत कैजुअल वे में बोला है, बट वो जो खर्चा वर्ड है ना, इस एज का बच्चा जब सुनता है ना, तो वो अपने दिल में वो हर चीज़ उसको लगता है कि मुझे ही बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अभी हाईलाइटेड है। क्यों? क्योंकि वही बाहर गया है, अभी वही हीरो बना हुआ है, वही वॉर फ्रंट पे है, युद्ध लड़ने तो वही गया है। तो कुछ भी बोलोगे तो वो अपने, भले आप उसको नहीं भी डायरेक्ट कर रहे हो, तो वो अपने ऊपर लेता है, तो गलत नहीं। फिर कोटा में बेसिकली कुछ के पेरेंट्स रहते हैं, और जिनके पेरेंट्स नहीं रहते हैं वो अकेले हैं। एक टेस्ट में मार्क्स कम आए, उनको लगता है पापा ने पैसे खर्च किए हैं, फीस इतनी है, मेरे रहने का खर्चा इतना है, प्रेशर बिल्ड होने लगा। तो दूसरे टेस्ट में अगर वो अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं ना, तो जो बैक साइड में जो इनका प्रेशर है ना, वो उनको उतना फोकस होने ही नहीं देता। वो बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, पर एक पढ़ने बैठना और पढ़ना दोनों में भी अंतर है। वेरी ट्रू। तो आप अनइंटेंशनली, पेरेंट्स नहीं करते कोई गलती, पर ये जो अनइंटेंशनली ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं ना, वो जो मैसेज पहुंचता है वो गलत तरीके से पहुंच जाता है। बहुत गलत। और ये जो 15-16 साल की एज है ना, एडोलेसेंट एज, ये इतने बागी बच्चे होते हैं। एक्चुअली क्या है, हार्मोनल चेंज होता है, उन्हें प्यार चाहिए। जब माँ बाप देख पढ़ाई अच्छे से करना, तो आपने सबसे पहले उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए। बच्चे को इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, उनको एक हक चाहिए। मैं इतना पेरेंट्स से एक ही क्वेश्चन हमेशा पूछती हूँ मेरे पेरेंटिंग सेशन में, कि आपको कम से कम दिन में आप ये बताओ कि कितनी बार इंस्ट्रक्शन देते हो और प्यार कितनी बार करते हो। तो जब पेरेंट्स ना बहुत ऑनेस्टली सोच के बताते, बोलते 50-60 बार तो दिन भर में हम इंस्ट्रक्शन देते। बैठा कैसे है, खाना कैसे खा रहा है, पानी की गिलास कैसे रखी, बुक्स कैसे रखी, मार्क्स कम क्यों आए, पढ़ा क्यों नहीं, लेट क्यों उठा, टीवी क्यों देख रहा है, मोबाइल क्यों चला रहा है।
since from morning to the night time, sets of instructions and orders. आपने कितनी बार उसको बोला ले आजा बेटा एक हक दे दे, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और दोस्त के साथ कब गया था, मूवी देखनी है, चल आज अपन बाहर होकर आते हैं, आज छोटी सी ट्रीट करते हैं, चल आज अपन दोनों बैठ के कैरम खेलते हैं, चल आज लूडो खेलें क्या, आज अपन दोनों मम्मी को है ना थोड़ा परेशान करते हैं. कब करा आपने ऐसा? नहीं किया. आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ इंस्ट्रक्शन. क्यों? बिकॉज यू हैव स्पेंड द मनी. आपने मनी लगाया है. इट इज जस्ट लाइक कि आपने एक जुआ खेला है, आपने मनी लगाया है, और आपको ये लगना है कि मैंने जो मनी लगाया है वो सही कन्वर्ट होगा या नहीं. तो मैं एक ही बात पेरेंट्स को बोलती हूँ, इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, हजारों में बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों में बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर में फोटो 50 का ही आता है. तो बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालो, उनको सोचने दो वो करना क्या चाहते हैं. एक्चुअली ना बहुत कम बच्चे होते हैं जो रियलाइज करते हैं कि हमें करना क्या और हम कर पाएंगे या नहीं. करना क्या इज अलग थिंग, और आप आपकी कैपेसिटी को खुद टेस्ट करो वेदर यू आर कैपेबल ऑफ इट और नॉट. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कर पाओगे. मेरा फ्रेंड जा रहा है तो मुझे कोचिंग जाना है, उसकी कैपेसिटी है पढ़ने की, मेरी नहीं है, तो व्हाई शुड आई स्पेंड माई टाइम एंड माई मनी. एक जमाना था जब कहते थे कि पैसा सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और सीए के घर आता है. मैं आज बोलती हूँ पैसा इनसे ज्यादा दूसरों के घरों में आता है. तो डोंट थिंक कि ये 3 ही करियर रह गए हैं. एम्पल ऑफ स्कोप इज देयर. और अपने बच्चे में सबसे बड़ी बात है फेथ रखें. हर बच्चे के पास कोई ना कोई क्वालिटी होती है. yes. हर बच्चा 95% मार्क्स लाएगा, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं. और एक बात बोलूंगी, 95 और 90% लाने वाला बच्चा 20 लाख का जॉब करता है 75% लाने वाले के यहाँ. एंड इट इज द आयरनी. yes. आप देखिएगा सर, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एवरेज स्टूडेंट या अबव एवरेज स्टूडेंट रहे, और उनके यहाँ 90% 95% वाले यस सर नो सर कह के 20 25 लाख का जॉब कर रहे हैं. सो व्हाई यू आर बिहाइंड द मार्क्स? ट्राई टू डेवलप द नेसेसरी क्वालिटीज इनटू योर चाइल्ड. यहाँ पे कॉन्फिडेंस, यहाँ पे स्कूल का भी एक बहुत मेजर रोल होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि पहले के ज़माने में जब बच्चे स्कूल में होते थे वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो जाता था कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है या किस दिशा में जाना चाहिए, और बच्चों का भी टीचर्स के ऊपर अलग फेथ होता था या अलग सम्मान होता था, जो आज की तारीख में थोड़ा सा मिसिंग है. तो आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पीपल आर गेटिंग एट व्हाट कॉस्ट? नो, बिकॉज स्कूल आजकल वो भी प्रॉब्लम में है ना सर. इट इज़ जस्ट लाइक 3 इडियट्स के वीरू सहस्त्र बुद्धे, लाइफ इज अ रेस. और ये जो एक स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट सबने फॉलो कर लिया है. कॉलेज स्टूडेंट, फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, लाइफ इज अ रेस. एक दिन बैठ गए तो बहुत पीछे हो गए, लाइट ईयर्स. आपको तो दौड़ना है. अब कहाँ दौड़ना है ये किसी को नहीं मालूम, बस दौड़ रहे हैं. किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे नहीं मालूम. ट्रेन में बैठ गए, ये ट्रेन कहाँ पहुंचाएगी नहीं मालूम, बस ट्रेन में बैठे हैं ना. इट इज जस्ट लाइक दैट. नहीं पता है. स्कूल को हेल्प करना चाहिए, करियर काउंसलिंग के सेशंस रखना, बच्चे की क्या क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी को जज करें. और ये करियर काउंसलिंग कौन से एज से या कौन से क्लास से होना चाहिए, व्हिच शुड बी द आइडियल एज फॉर स्टार्टिंग काउंसलिंग? बिकॉज काउंसलिंग का भी एक प्रॉपर टाइम होना जरूरी है, व्हाट आई फील पर्सनली. या सर, मैं इसमें थोड़ा सा, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. देखिए, काउंसलिंग एक अलग सेशन है, बट आप बच्चा जब 2nd 3rd में आता है तब से आप उससे पूछिए बेटा क्या बनना है. ठीक है, वो 10th तक आएगा तब तक बहुत चेंज करेगा, पर ये पूछने से क्या होगा, वो बच्चा फोकस्ड होना सीखेगा. जो एक पहली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो बच्चे में होना चाहिए, फोकस्ड. हमारा आज का बच्चा न छोटपन में, न बड़े होके, न कॉलेज में फोकस्ड ही नहीं है. वेरी ट्रू. तो वो फोकस होना सीखता है. ठीक है, 2nd 3rd 4th उसने सोचा मुझे इंजीनियर बनना चाहिए. 6th में आके आता है तो उससे लगा नहीं यार बायो इज गुड, नहीं पापा नो आई वांट टू शिफ्ट में, मेरे को बायो करना है. ओके फाइन, फोकस्ड है. अगेन वो फोकस्ड है. yes. उसने खुद ने पता करा कि मैं किस लाइन में जा सकता हूँ. 80% बच्चे इसको सस्टेन करते हैं, 20% को 11th 12th में आके लगता है कि नहीं इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. ओके, नो इशूज. वो सोचते हैं अब मैं ये कर सकता हूँ, बट स्टिल वो फोकस्ड है.
काउंसलिंग की सही एज 8th 13-14 साल का बच्चा होता है। साइकोमेट्रिक असेसमेंट होते हैं, उससे हम ये जज कर लेते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी क्या है। और जब आप बच्चे की पर्सनालिटी जज कर लेते हैं तो आप उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसको एम्पल ऑफ ऑप्शंस दे सकते हैं कि आपके ये हो सकते हैं करियर। अब आप देख लीजिए, आपको साइंस पसंद है तो इसे ऑप्ट कर सकते हैं, साइंस नहीं पसंद है तो आप इधर ऑप्ट कर सकते हैं, इसे इधर ऑप्ट कर सकते हैं। ओके। और बच्चा अगर उस तरह से जाता है तो वो अपनी लाइफ में वंडर्स करता है। मैं जो पर्सनल फ्रीलांस भी देती हूँ काउंसलिंग, तो आई हैव सीन बच्चा 95% मार्क्स लेकर आया 10th में, अच्छी कोचिंग क्लासेस में 11th-12th की जा रहा है, 11th में तो पढ़ लिया, 12th में आते आते वो एकदम एग्जॉस्ट हो गया। तो ये जो अभी के तारीख में जितने भी स्कूल्स हैं, सो कॉल्ड बड़े अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे फीस भी बहुत हेफ्टी है, क्या वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग होता है? आई डोंट थिंक सो। Then if it is so important, then why this has not been including in that particular fee structure कि वो भी फीस कम पड़ रहा है इनको? No answers. I don't want to answer here because it depends ना from person to person. हाँ, I have found one school जहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट वो करवा रहे हैं, वो जो भी उनका फीस स्ट्रक्चर है उसमें वो इंक्लूड किए होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कूल्स होंगे जो करते हैं। As a school, you have a certain social responsibility. Yeah. So if you have that social responsibility, rather than creating additional amenities, why you are not creating this counseling when it is so important to build the career of that kid you are taking care of? My suggestion is there. If you are not doing this ना, कि because if you think कि आप 1-to-1 काउंसलिंग कराएंगे तो it would be very expensive one, तो you can do one thing. आप एक बच्चों का ग्रुप बुलाकर उनकी काउंसलिंग करा दीजिए, ग्रुप काउंसलिंग करवा दीजिए। वो आपके लिए इतनी एक्स्ट्रा काउंसलर को आपको 2 दिन बुलाना है, वो ग्रुप में अपने एक लिमिट सेट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ काउंसिल कर सकता है। और बच्चों को अगर कुछ क्वेरी होगी तो वो वहीं पे पूछ सकते हैं, और अगर उन्हें लगेगा तो वो पर्सनली भी उनके साथ काउंसलिंग सेशंस के लिए जा सकते हैं। बट स्कूल को नो डाउट ओवरऑल एक सेट ऑफ ग्रुप में तो काउंसलिंग सेशंस करवाने ही चाहिए। आप 1-to-1 या साइकोमेट्रिक ना कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकोमेट्रिक जिस स्टूडेंट को ज़रूरत है वही करवाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत क्लियर होते हैं सर कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है, और वो होते हैं, कर भी लेते हैं तो ओके। बट जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में है, नो डाउट उनको आपको हेल्प करनी चाहिए कि आप उनको करियर काउंसलिंग करवाएं, और स्कूल करवा सकते हैं। ऑब्वियसली करवा तो सकते हैं, बिल्कुल और उन्हें करवाना भी चाहिए। Because basically you are there to build the career of the kid, जो आपके यहाँ since from 4 years से आपके यहाँ हैं, और वो 4 साल से लेकर 15 साल तक आपके यहाँ हैं। सो मुझे तो लगता है पेरेंट्स भी इसी चीज को ज्यादा एक्सेप्ट या अप्रूव करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। हाँ, जहाँ पे फीस आप इतना ले रहे हैं वहाँ पे तो आपको ये एमिनिटीज की जगह पर अगर आप ये प्रोवाइड करेंगे, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। यस डेफिनेटली, एंड दे शुड डू। नाउ अनदर पॉइंट, जैसे कि आपने बोला, बहुत सही बोला है, जो वीरू सहस्त्रबुद्धि वाला जो है रेस में भाग रहे हैं सब, तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम भी तो यही करवा रहे हैं हमसे। सो जब आप क्लास में ही एक रेस करवा रहे हैं, कौन सा मार्क्स ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, उसी की तवज्जो है, तो बच्चा तो ऑटोमेटिकली इस रेस में वो साइकिल के पहिया घूम गया एक बार तो उसी में ही चल रहा है। वो तो सोच ही नहीं पा रहा है कि इसके आगे भी कोई दुनिया है, इसके आजू बाजू भी कोई दुनिया है। सो हाउ टू बाइफरकेट दैट वे, और एजुकेशनल सिस्टम को बदलने के लिए ऑप्शन क्या है? हम बहुत समझते हैं या बहुत लोग समझते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, और पर्सनली अगर मुझे कोई पूछे तो मैं तो यही बताता हूँ कि हम लोग लेबर क्रिएट कर रहे हैं, बट एडुकेटेड लेबर क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर हम एडुकेटेड लेबर क्रिएट करते जाएंगे तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा और हम जॉब क्रिएटर बन जाएंगे, बिकॉज आप तो जॉब पाने के लिए फौज तैयार कर रहे हो, तो जॉब देने वाले की फौज तैयार करने के लिए सोच अलग होनी चाहिए। तो वो सोच अगर स्कूल में ही आप नहीं डालेंगे, बच्चों के दिमाग में अचानक से 24 साल के बाद ये पैदा हो जाएगा। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग डाउट ऑन दिस। व्हाट इज योर पॉइंट इन दिस? बेसिकली मैं कहूँगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इट इज़ गुड, बट अगर वो सही फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो तो। प्रॉब्लम तो हमारे पास यही है, इम्प्लीमेंटेशन। उसके बिहाइंड जो उसका थॉट प्रोसेस है दैट इज एक्सीलेंट, बट एक्चुअली जब हम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट पर जाते हैं तो वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। अभी हमारे पास सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम आता है कि बच्चे को जैसे 10th 12th की बोर्ड एग्जाम्स आती है ना, तो आप देखिएगा अचानक
पूरी मीडिया जाग जाती है कि बच्चे का स्ट्रेस बढ़ रहा है। आप रेडियो चैनल ले लो, टीवी चैनल ले लो, आप कुछ भी देखो, बच्चे पे स्ट्रेस बहुत है। आपके ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, सीबीएसई चला रहा है, गवर्नमेंट चला रही है। बच्चों जहां भी तुम्हें लगेगा कि कुछ टेंशन है, आप कॉल करो, ये हमारा टोल फ्री नंबर है, एंड सो। इतना स्ट्रेस वाला माहौल हमने क्रिएट क्यों किया है? हमें बच्चों की एजुकेशन की सिस्टम और वे को चेंज नहीं करना है, हमें सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है जो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और ये प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है? हमने सर मैं बताऊं तो अभी आजकल तो स्टूडेंट्स सेमेस्टर वाइज कोर्स पढ़ते हैं और वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आता ही नहीं। हमने तो पूरा साल भर पढ़ा है और हमारे पास तो स्ट्रेस ही नहीं होता था। ट्रू है ना? पर आजकल के बच्चों को उतने से का भी स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बीइंग अ पेरेंट एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कि तुम्हें इतना स्कोर करना है। अब इसमें मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लुकिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जब कोई एडमिशन के लिए जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, वहाँ पे कटिंग मार्क्स होने लगे हैं। सो कभी कभी तो मुझे दिखता है कि वो 95 में ख़त्म हो जाता है। तो जब 95 में आपका कटिंग ख़त्म हो रहा है, तब अगर 95 के ऊपर नहीं लाया तो उसके लिए तो रेस से अलग हो गया। सर तो ये सिस्टम क्या सही है कि 95 में आप कटिंग मार्क्स दे रहे हो तो लोग भागेंगे ही? 95 तो बहुत अच्छा बोला, 99 पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स तो 99 पे कट ऑफ हो जाते हैं। देन यस, गलत है सर, बहुत गलत है। इतने मार्क्स ही नहीं आते बेसिकली, मैं बोलूँ आजकल की मार्किंग सिस्टम ही बहुत गलत है। सिर्फ मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आ सकता है, जहां पर फुल मार्क्स स्कोर कर सकता है। यस, अदरवाइज आप हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर आपका है, आपका सोशल साइंस है, आपका साइंस है, नो आंसर इज अ परफेक्ट आंसर अंटिल एंड अनलेस इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ट्रू। अगर आप थियोरी है 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है। बट हमारे यहाँ क्या है, एक सेट ऑफ आंसर्स हमने क्रिएट कर लिया, इसको आपको 5 on 5 देना है। बच्चे को हम रट्टा तोता बना रहे हैं। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी रह नहीं गई है, बच्चे के पास सोचने की प्रोसेस ही नहीं है। 6 क्लास का बच्चा AI चैट बॉक्स चला लेता है, और अगर स्कूल ने बोला ये करना है, मम्मा रुको ये असाइनमेंट है, मैं AI पर चैट बॉक्स पर चैट GPT करता हूँ, अब भी आ जाएगा। तो बच्चा अगर एक लाइन अगर मैं उसको बोलूँगी कि आज एप्लीकेशन या ज्वाइनिंग लेटर लिख दे, तो वो अपने मन से ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं लिख सकता। हमने उसकी क्रिएटिविटी को डम कर दिया, उसके माइंड को डम कर दिया। जो थोड़ी बहुत भी सोचने समझने की शक्ति थी वो भी डम हो गई, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। बदलने का तरीका क्या है? बदलने का तरीका ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स को जागना होगा। पेरेंट्स जागेंगे तो समाज जागेगा, समाज जागेगा तो ये सोसाइटी और ये एजुकेशन पॉलिसी और ये देश जागेगा। हम लोग एक्चुअली पेरेंट्स ही इतना ज़्यादा बच्चों को प्रेशर करें। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ सर। एक हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। फादर इज़ अ सुपर्ब न्यूरोलॉजिस्ट, मदर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड डॉक्टर। दोनों का एक बेटा है और वो बेटे ने 8th क्लास में बोला आई वॉन्ट टू बिकम अ पियानिस्ट, म्यूज़िक में जाना चाहता। पेरेंट्स बोला ओके, पियानो की क्लासेस लगवा दी। 10th में आते आते बोला मुझे अपना करियर बनाना है। ओके, दोनों अच्छे हैंडसम अर्निंग थे। अपने बच्चे को नीदरलैंड्स भेजा। 3 साल बच्चे ने वहाँ पर बहुत अच्छे मेंटोर के अंडर सब सीखा। उसकी जो मम्मा को बीच बीच में से सपने आने लगे, मेरा बेटा, हम दोनों डॉक्टर हैं, हमारे बच्चे का तो 12th ही पास नहीं है, हमारे बच्चे का तो 12th ही नहीं है, 3-4 साल ऐसे ही हो गए, उसका अच्छा करियर होना चाहिए, क्या करेगा आगे। तो वो जो फादर थे वो एक ही बात बोलते थे, अच्छा करेगा, उसको उसका ड्रीम जी लेने दे। 4 साल वो वहाँ से पढ़कर आया, जब तक कि वो कॉलेज में आ सकता था। आया तो मदर की बहुत जिद्दी, नहीं एटलीस्ट वो 12th की डिग्री तो हो। बोले डन, उसको 12th करवाया। उसने बहुत अच्छे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी में कनाडा में एडमिशन लिया, वहाँ से पढ़ाई करी। आज वो जो नोट्स बना रहा है वो क्रोर्स में सेल हो रहा है। फेथ रखना पड़ेगा, फेथ। बच्चा सब कुछ कर सकता है, आप बस उसको ये बोलो कि एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ज़रूर रखो। अगर इन केस ये नहीं हुआ तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है। बट बच्चों में विश्वास तो रखें। अभी जो एजुकेशनल सिस्टम है प्रेजेंटली, जहाँ पे स्कूल एक बहुत बड़ा कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बन गया है रादर देन एजुकेशनल सिस्टम, साथ में एक पैरेलल सिस्टम और क्रिएट हो गया जिसको हम कोचिंग सेंटर के नाम से जानते हैं, एंड दैट इज़ मोर फ्लरिशिंग
and more promising in terms of business compared to school even. So एक तो स्कूल का खर्चा, वो कोई साधारण खर्चा नहीं है आज की तारीख में, और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट स्कूल में देना है, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन नहीं देना है, बेस्ट स्कूल में देना है. तो अब बेस्ट स्कूल का एक खर्चा, स्कूल के बाद अगर बेस्ट स्कूल में देने के बाद भी आपको उसका 1.5 गुना खर्चा करके कोचिंग सेंटर में भी डालना पड़ रहा है, देन वेयर वी आर एक्चुअली वांट टू गो. एक्चुअली क्या होता है, बट पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम पैसा खर्च करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर देते हैं. सबसे बड़ा ये तो गिल्टी को एड्रेस करना होगा. मिथ है ये. और वो बाद में भी क्या कहते हैं, कितने पैसे खर्च करे, बेस्ट एजुकेशन में भेजा था, बेस्ट स्कूल दिया था. मतलब वो यह सोचते हैं कि मैंने महंगा खिलौना ला दिया, महंगे स्कूल में पढ़ा दिया, महंगी कोचिंग में पढ़ा दिया, मतलब मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी कर दी. यस, बट दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा करना क्या चाहता है उसे असेस करें. मैं समझ गया हूँ, पेरेंट्स की एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. पर आप जो बोल रहे हैं मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ. बेसिकली क्या होता है कि सर एजुकेशन सिस्टम में आजकल एक डमी कल्चर आ गया है. यस, दैट इज अनदर थिंग. 10th तक आपने बेस्ट अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद पेरेंट्स क्या करते हैं, डमी के कोचिंग सेंटर्स जो आप बोल रहे हैं फ्लरिश कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स के पास जाते हैं, कोचिंग सेंटर से एक लिस्ट दे देता है कि आप आपके बच्चे को इनमें से किसी भी स्कूल में करवा दीजिए, डमी है और बाकी हमारे यहाँ पड़ेगा. तो पेरेंट्स का जो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट, स्कूल का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट का जो मैटर होता है वो वाइप ऑफ हो जाता है. उसे मालूम है कि मुझे सिर्फ कोचिंग पर देना है, और अगर वो बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो उसके रहने करने पे खर्च करना है. टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट. आप कभी भी, मतलब मैं तो नहीं करता हूँ खैर ये चीज़ प्रमोट, बट व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेकिंग दिस डमी? डू यू रियली एग्री विद दिस फैक्ट कि ये कोई राइट अप्रोच है? नॉट एट ऑल. मैं तो बोल रही हूँ कि मैं एक रिवोल्यूशनरी पेरेंट हूँ. मैंने जो बताया था कि एग्जाम्पल दिया था मेरे नेफ्यू का, वो अभी 11th क्लास में, इस बार 10th तक उसने सेल्फ स्टडी किया, और मैंने 10th में उसकी कोचिंग लगाने की कोशिश करी कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, तुम अच्छा पढ़ते हो. वो 6 दिन गया और बोलता कोचिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं खुद पढ़ के अपने नंबर्स ले आऊँगा. ना मैंने उसको घर पे 8-8 घंटे पढ़ते हुए देखा. उसने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करी, पर ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन रात पढ़ रहा है. एंड ही स्कोर 90% मार्क्स एंड वी ऑल वर वेरी सेटिस्फाइड. और 11th आते से बोलता मुझे कोचिंग लगवा दो. हमने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब तुम कोचिंग का तो करने लायक हो ही नहीं. 10 दिन बाद बोलता कोचिंग लगवा दो, अच्छी कोचिंग्स निकल जाएगी. मैं, मी एंड माई ब्रदर, हम बहुत सारे कोचिंग्स में गए, मैं नाम नहीं बोलूँगी यहाँ पर. हमने इंदौर की, मैं रहती भी गीता भवन साइड में हूँ, और मेरे आसपास सारी बिग कोचिंग सेंटर्स हैं. हम सारे कोचिंग सेंटर्स विजिट किए. जाते से हमें सबसे पहले एक पन्ना आ जाता है, मैडम यहाँ पे कहीं पे भी आप एडमिशन करा देना, डमी है, ये कोचिंग के टाइमिंग्स हैं, आप बताइए कौन से टाइम प्रीफर करेंगे. मैंने बोला मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, आप बताइए कि स्कूल जाने वाले बच्चों की कोचिंग का टाइम क्या है. मैडम आपका बच्चा सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा. दैट इज़ माई प्रॉब्लम. मैंने बोला ही नहीं कि मेरे बच्चे को आप सिलेक्ट करवाओ. मेरे बच्चा सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन लेने आएगा. इतने बच्चे सिलेक्ट हो जाते फिर तो. मैंने बोला मेरा बच्चा सिर्फ पढ़ने आएगा, आप पढ़ाओ उसे. सिलेक्ट हो रहा नहीं हो रहा, ये मेरी प्रॉब्लम है. yes, पर मेरा बच्चा स्कूल जाएगा. मैडम यू आर डूइंग रॉन्ग विद द करियर ऑफ योर किड. नो, इट्स माई प्रॉब्लम ना. मेरा बच्चा स्कूल जाएगा. 2-3 कोचिंग वालों ने तो मुझे एंटरटेन ही नहीं किया कि मैडम फिर आप हमारे यहाँ नहीं चलोगे. अच्छा. एक ने सुना कि भाई मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को वेटेज दिया. ठीक है मैडम, हम आपके हिसाब से ये इनकॉर्पोरेट करते हैं. आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. एक तो बिग फीस, इट इज जस्ट लाइक पैकेज. यस. और उसमें भी बार्गेन होता है, बढ़िया वाला बार्गेन होता है. अच्छा. आप कितने अच्छे बार्गेनर हो उस पर डिपेंड करता है. okay. फिर धीरे से पता चला कि एक इंडिविजुअल कोचिंग्स भी हैं और बहुत अच्छी हैं. मैंने बोला ट्राई करेगा. हाँ, 2 दिन गया. पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं ना आजकल के, जैसे 1-1, 2-2 ही बच्चे होते हैं, घर में ऊंची आवाज़ सुनी नहीं होती है. सेम विद आवर किड्स ऑल्सो. वहाँ सर ने थोड़ा डांट, मतलब सर की आदत ही डांट के पढ़ाने की, कोई इंडिविजुअल नहीं डांटा, बोलने का स्टाइल वैसा है. तो बच्चा वाज लाइक ऐसे कैसे पढ़ाते हैं, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा. एकदम उदास. बोला नहीं जम रहा है मत जाओ, पर बेटा सुनने की तो आदत होना चाहिए. कोई तुम्हें पर्सनली बोला, और उनके बोलने से क्या तुम डोंकी बन गए? और बन गए तो ठीक है, हर्ट हो रहा है ना, पढ़ो, साबित करो. मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, इतना अपने को ना फूल बन के नहीं रहना है. उसको लगी कोई बात. मैं और मेरे भैया दोनों एडमेंट रहे, जाना है तो जा, नहीं जाना तो मत जा, हम तो तेरे को फोर्स भी नहीं कर रहे. तू जो करेगा अपनी लाइफ में, वी आर हैप्पी.
वी आर नॉट फोर्सिंग कि तू जा कोचिंग जा ये कर वो कर. इट्स योर लाइफ, टेक योर डिसीजन, वी आर विद यू. गलत करेगा हम गाइड करेंगे, पर डिसीजन तेरा है, क्योंकि जीवन भर आप उसका साथ नहीं दे सकते डिसीजन लेने के. Yes. तो उसको आप अभी से आदत डालें कि वो डिसीजन लेना स्टार्ट करे. वो गया, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा, अच्छे रिजल्ट्स आने लग गए. और हमने बोल दिया ये स्कूल जरूर जाएगा. उसके टीचर्स आर लाइक दिस, जिस दिन छुट्टी हो सुबह से आ जा, प्रैक्टिस करना यहीं बैठकर. ओके एंड ही इज फाइन. सर जो बच्चा डमी लेकर रहता है वो भी घर में 6 घंटे भी नहीं पढ़ता है. तो ये भी कितना पढ़ता है, वो भी सिर्फ कोचिंग आकर बैठ जाते हैं. तो ये कोचिंग के साथ स्कूल तो जा रहा है. स्कूल में बच्चे को राइटिंग की हैबिट हो रही है, कोचिंग में बच्चा सिर्फ MCQ स्टिक करता है. और स्कूल में एक चीज का भी फायदा है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स. यस. और सर कोचिंग में क्या होता है, फिर जब वो 11th 12th के एग्जाम लिखते हैं ना, मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं कि 12th में उनका रिजल्ट ही अच्छा नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव राइटिंग हैबिट. यस, दे डोंट राइट द आंसर. उनको सिर्फ MCQ स्टिक करना आते हैं. कोचिंग वाले 15 दिन में कोर्स तो करवा देते हैं, बट राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी ना करवाते हैं. और स्कूल जाओगे आपको कॉपी भी बनानी है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, आप थोड़ा मस्ती भी करोगे, आपको थोड़ा सा बोलने का स्किल भी आएगा. नहीं तो बच्चा जो घर में रहता है 2 साल डमी रहता है, वो बोलना भूल जाता है, इंटरैक्ट करना भूल जाता है, उसकी पब्लिक स्पीकिंग एकदम लॉस्ट हो जाती है. तो जब वो जाकर GDPI देने बैठता है तो उसको पता ही नहीं कि इंटरैक्ट कैसे करते हैं. और स्कूल में रहा बच्चा, उसको मालूम है कि इन 25 बच्चों में मेरे को आगे निकल के आंसर देना है, तो उसको कैपेसिटी मालूम है कि ग्रुप डिस्कशन में मैं कैसे आगे अपना पॉइंट रखूँ. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. तो फिर इन बच्चों को GDPI की क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ती, एक्स्ट्रा कोचिंग लेने ली पड़ती. क्यों? क्योंकि उनको बेसिक स्कूल का नॉलेज है. बट वो कन्वेंशनल जो स्कूल हुआ करता था वो आज की तारीख में तो कम्प्लीटली मिसिंग है. मतलब नहीं, कुछ स्कूल्स हैं 10-20% हैं सर. मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि मेरा बच्चा स्कूल भी जा रहा है, कोचिंग भी जा रहा है, एंड वी आर वेरी फ्री. ठीक है, आज से कोई स्कूल नहीं जाना, कोई बात नहीं. वीक में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन छुट्टी करा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. तेरी कॉपी कंप्लीट होना चाहिए. तो कैसे करेगा? तेरे टीचर्स से हमारे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए. एंड ही इज डूइंग, और वो पढ़ भी रहा है, कोचिंग भी जा रहा है. और सर आप जो डमी वाले बच्चे आप उनको देख लो, कितना एक्स्ट्रा घर में पढ़ते, नहीं पढ़ते. बच्चे की कैपेसिटी होती है, वो उसके बियॉन्ड नहीं पढ़ सकता. और 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा तो एक सीट पर बैठ ही नहीं सकता. और हमारे कुछ कोचिंग क्लास ऐसे हैं जो 10-10 घंटे रखते हैं अंदर. तो आप बताओ, मैं इतना पढ़ी हूँ या बच्चे भी आज पढ़ते हैं, 1.5 घंटे बाद मुझे भी एक मूवमेंट चाहिए 10 मिनट का. मेरे माइंड को फोकस शिफ्ट करना पड़ता है, तब वापस मैं रीफोकस कर पाती हूँ. तो ये छोटे छोटे बच्चे 10 घंटे एक ही छत के नीचे बैठे बैठे अपने आप को कैसे फोकस करेंगे? तो बेसिक क्वेश्चन है, इसे तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आंसर कर सकता है. तो हम पेरेंट इतना ब्लाइंड क्यों हो गए? ये हमारी प्रॉब्लम है सर. अब स्कूल के बात में अगर मैं थोड़ा सा और एक करूं, तो स्कूल में बहुत सारे बार मुझे ये सुनने को मिलता है या नैरेटिव ऐसा बन जाता है कि हमारे स्कूल के टीचर को हम लोग अच्छा पे करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न आवर एजुकेशनल क्वालिटी इज़ गुड, बेटर, एंड एज वेल एज फीस. ऑन द कॉन्ट्ररी, कोचिंग सेंटर की जो टीचर्स होते हैं, दे आर गेटिंग मोर पेड देन द स्कूल, एंड ऑल गुड टीचर्स दे आर प्रेफरिंग टू ज्वाइन ए कोचिंग सेंटर रादर देन गोइंग टू स्कूल. अब ये जो क्वालिटी ऑफ टीचर की जहाँ तक बात है, ये क्वालिटी ऑफ टीचर को हम कैसे देखें और कैसे पेरेंट्स सिलेक्ट करें कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग कहाँ पे मिलेगी? राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क बेसिकली. कोचिंग सेंटर्स में सर एक्चुअली क्या है, देखो हर व्यक्ति की बेसिक नेसेसिटी मनी है. यस. तो अगर बंदा वहाँ पे भी तो रेस है. हाँ, वहाँ पे भी रेस है और लाइफ है, सारी अम्यूनिटीज चाहिए, सारी इच्छाएं पूरी करनी है. तो डेफिनेटली जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा बंदा वहाँ जाएगा. गलत भी नहीं है. मैंने वही बोला कि हमको हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा. तो जो ये हम JEE और नीट की एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, हमको इसका पैटर्न चेंज करना होगा. हमें इसमें जो कोचिंग से जो बच्चे आ रहे हैं, हमें ऐसा पैटर्न लाना होगा वापस से कि कोचिंग हट जाए, स्कूल बेस्ड सारी चीज़ें हों. जो सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरह से डेवलप किए जाए जिसमें स्कूल का इन्वॉल्वमेंट, बच्चे का स्कूल में इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा वेटेज दिया जाए, ताकि बच्चा वापस से स्कूल में शिफ्ट हो फ्रॉम कोचिंग. और ये हमको फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा फ्रेमवर्क ऐसा है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पेपर है और इसको सिलेक्ट करोगे तो आप सिलेक्ट होगे. तो डेफिनेटली टीचर्स वहाँ अच्छे हैं, स्कूल में टीचर्स अच्छे होते हैं सर. टीचर्स सब दूर अच्छे होते हैं,
जो टीचर्स अगर वहाँ सिलेक्ट हुए हैं तो वो सब पढ़ाने के लिए इक्वली कैपेबल और कॉम्पिटेंट हैं। आपको आपका नज़रिया चेंज करना है। सर वही एंजियोप्लास्टी आप हिंदुजा में भी करा लो, ब्रिज कैंडी में भी करा लो, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में भी करा लो, मेडिकेयर में भी करवा लो, होती है ना। बट वहाँ पे बात आ जाती है कि कौन कर रहा है, उसकी एक्सपर्टी की बात आ जाती है। लोग तो समझे सर नहीं समझे, समझाए यही जाता है एक कि इट बंदा इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ मशीनरी एंड द क्वालिटी ऑफ एक हैंड। बंदा ही क्या पूरे देश की बाईपास कर रहा है? नहीं बिल्कुल ना, नहीं। बाकी डॉक्टर्स तो फिर मर ही जाएंगे। बट ये जो एजुकेशनल सिस्टम एक जो बिजनेस बन चुका है, स्कूल अपने ब्रांचेस बढ़ाने पे लगे हुए हैं, साइमल्टेनियसली कोचिंग सेंटर भी अपने ब्रांचेस बढ़ाने पे लगे हैं, रादर देन दे आर ऑन द मोर फास्टर पेस। आजकल तो ऑनलाइन वाला सिस्टम भी अलग तैयार हुआ है जो अलग तरीके से फ्लरिश कर रहा है, हाइब्रिड मॉडल पे। तो जब अपन इतने फ्लरिश करने की बात कर रहे हैं तभी कर पा रहे हैं जब हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं। तो हमने तो ये नैरेटिव ही क्रिएट कर दिया सोसाइटी में कि स्कूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोचिंग सेंटर है, बिकॉज स्कूल में कुछ होता नहीं है। सो अभी आप बोल रहे हैं कि स्कूल को हमको रिबिल्ड करना है टू क्वालिटी। तो ये तो शीर्षासन करने वाली बात नॉट स्कूल को, मैं बोल रही हूँ कि हमको हमारे पैटर्न को चेंज करेंगे तो स्कूल चेंज हो जाएंगे। बेस क्या है इसका, मतलब कहाँ से शुरू करेंगे? सर ये बिकॉज सीबीएसई का स्टैंडर्ड ही हो गया 90% व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आई कंप्लीटली डिसएग्री ऑन दिस। वहीं से हमें चेंज लाना पड़ेगा। मैं वही बोल रही हूँ, रिफॉर्मेशन तो सर जो गाइडलाइंस और रूल्स रेगुलेशंस है, लेकिन सरकार तो इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमको एजुकेशन, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल एंड एजुकेशन इज आल्सो गुड क्वालिटी, बिकॉज वो तो मार्क्स के हिसाब से देख रहे हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। एजुकेशन फॉर ऑल में तो सरकार यही कर रही है कि सब बच्चा पास होना चाहिए। हाँ, भले बच्चों को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और बच्चा पास हो जाना चाहिए। दैट्स व्हाई इन 10th अप्लाइड एंड कोर मैथमेटिक्स इज देयर। हमारे टाइम नो अप्लाइड नो कोर। तो एक्चुअली सरकार जो आप कह रहे हैं ना, पढ़े लिखे लेबर बनाना चाह रही है। सब अपने अपने पॉइंट अर्न करने में लगे हुए हैं, बट nobody is bothered about the real education, real knowledge, real wisdom and real upbringing of the child. क्या आप होप रखते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को कोई बदलता हुआ हम देख पाएंगे हमारे कार्यकाल में, हमारे जीवन काल में? जैसे कुंभ 144 साल में होता है, हम भी क्या यही उम्मीद करें कि अगले कुंभ तक चेंज हो सकता है? सर ये तो डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे, आम जनता की, क्योंकि ये हर्ड है, शीप हर्ड कहते हैं ना। जिस दिशा में लोग एक जाता है, एक अच्छे दिखते हैं, सब उसके पीछे हो जाते हैं। कोई सोचता नहीं है। सब सोचते भगत सिंह अच्छा है पर किसके घर से पैदा होगा वो दूसरा मेरे घर को टच ना करे। एक बंदे को तो आगे आना पड़ेगा, और जब तक हम सब आगे नहीं आएंगे, हम सब इसका रिवोल्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो जो 144 साल बोले हैं वो 144 भी हो सकते हैं, 288 भी हो सकते हैं, और वो 20 साल भी हो सकते हैं। डिपेंड्स हम लोगों की, यंग जनरेशन की, हमारी जनरेशन की थॉट प्रोसेस कितनी थॉट प्रोवोकिंग है, हम कितने लोगों को जागरूक कर पाते हैं इसके लिए। ये हमारी थॉट प्रोसेस हम हमारे घर से शुरू करें ना। जैसे मैंने शुरू करा कि मेरे को डमी में नहीं डालना है, आप धीरे धीरे अगर सभी स्टार्ट कर देंगे, डमी में नहीं डालेंगे, तो सर फिर कोचिंग क्लास में थोड़ा तो इफेक्ट आएगा। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर ये बीइंग, और ये मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, हो सकता है कोई व्यूअर हो और एक भी अगर चेंज होता है, हम प्लस साइड पे है। ट्रू, वेरी मेरी बात सुनकर मेरे फ्रेंड सर्कल में से 4 लोगों ने अपना डिसीजन चेंज किया, मेरे लिए ये प्लस है। Yes. मैं अपनी बात को अपने बहुत सारे लोगों के थ्रू फ्लोट करती हूँ। जिसने माना, मेरा काम है फ्लोट करना। जरूरी नहीं कि हर कोई कन्विंस हो, बट मेरे पास ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने मेरी बात फ्लोट करी। और सर जितने लोग डे बाय डे, ये अगर एक कहते हैं ना जंगल की आग कैलिफोर्निया में लगी हुई थी, जैसे अभी थोड़ा सा शुरुआत में ही टाइम लगता है, पर एक बार जब लग जाती है ना तो फैल जाती है। सर वो बस हमको थोड़ी सी मेहनत करनी है इनिशियल लेवल की। आप कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे हम सब एक ग्रुप बन जाएगा। कोशिश करेंगे जितने जहां तक पहुंचा सकते हैं। यस, डेफिनेटली। और हम सब बीइंग अ पेरेंट, अगर हम चेंज होंगे तो ही हम किसी को चेंज करवा सकते हैं। दैट इज ट्रू। कॉमन मैन में ही ये एक वो कहते हैं कि पावर होती है। यस, ट्रू। जो एक मूवी का डायलॉग है ना, गलत नहीं है, कि डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। बट कॉमन मैन को अभी अपनी पावर पता ही नहीं है। हाँ। जिस दिन उसको अपनी पावर रियलाइज हो जाएगी ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ट्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2-4 पहलू अभी नए नए आए हैं। एक तो जिसको हम बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, वो बोलते हैं स्किल इंडिया।
तो स्किल देने की बात करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं. हाउ डू यू सी दिस वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल इंडिया, और स्किल इंडिया की जो भी पहल है या जो भी चहल है, वो आप कैसे देखते हैं पहला, एंड हाउ मच इट इज़ इफेक्टिव एंड हाउ मच इट इज़ ऑन पेपर एंड हाउ मच इट इज़ ऑन रियलिटी? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? दिस इनिशिएटिव इज़ वंडरफुल. ओके. क्योंकि बेसिकली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, थियोरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है. जब हम प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमने जो पढ़ा और हम जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गैप है. थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा है. मतलब अंतर होता है. अगर आप स्किलिंग को इनिशियल लेवल पर स्टार्ट कर दोगे और एज पर एनईपी हम स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ वंडरफुल अप्रोच कि बच्चा अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी स्किल को डेवलप करेगा और उसी में करियर बिल्ड करेगा, तो उसको उस प्रोफेशनल फील्ड को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. कॉन्सेप्ट इज़ वंडरफुल until and unless it is being implemented in the right manner. ठीक है, जो स्कूल्स हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी फीस चार्ज करें, नो डाउट वो अच्छा स्किलिंग प्रोवाइड करेंगे. बट अगर जो गवर्नमेंट एजेंसीज की मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है कि परमिशंस और अथॉरिटीज़ निकलने में इतना टाइम लग जाता है कि जिस बच्चे को अभी हमने एनरोल किया था ना, उसको 2 साल हो जाते हैं, तो उसका मन हट जाता है उस चीज़ से. या फिर जो एजेंसीज ये चीज़ करवाती है तो उनका पेमेंट लेट मिलता है, और उनके एक्सपेंसेस हो चुके होते हैं. तो फिर अगेन एक बार अगर वो बहुत मोटिवेशन में बहुत अच्छा काम भी कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम में उनके वर्क पे इफेक्ट आता है. तो बेसिकली ज़रूरत है ईमानदारी की, तो है ही, और ईमानदारी सभी लेवल पर, ट्रेनिंग देने वाले पे भी, फंड रिलीज करने वाले पे भी. क्योंकि गवर्नमेंट तो पॉलिसीज अच्छी बना रही है, बट ये फेल क्यों हो जाती है? बहुत सारे लूप होल्स हैं. तो ये लूप होल्स हमारे कवर अप होने चाहिए. ओके. तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग जो हम करवाते हैं, ये वोकेशनल ट्रेनिंग क्या स्कूल लेवल पे ही शुरू हो जाता है आज की तारीख में? एज पर एनईपी स्कूल लेवल पर स्टार्ट करने का कौन पूरा सा क्लास से करिकुलम शुरू करते हैं ये? सर 6-7 से. 6-7 से. ओके. एंड ये वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत वो अपना डिसाइड कर सकता है कि उसके पास है कोई स्पेशल स्किल अगर है, देन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड कैन गो टू दैट. सर देखिए, स्कूल्स में तो अभी एनईपी फुल लेवल पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है. ओके. धीरे धीरे हो रही है. पर कॉलेज में अगर मैं एमपी में बोलूँ तो एमपी में यूनिवर्सिटीज़ में हो चुकी है. एंड एज वी सी बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज बच्चों को ऑप्शंस अवेलेबल है. अगर वो बच्चा बीबीए का है, बीकॉम का है, और अगर वो फूड डाइटिशियन या न्यूट्रिशन पर भी अगर अपना करना चाहता है स्किलिंग, तो वो कर सकता है. अगर उसको कथक में इंटरेस्ट है तो कथक में कर सकता है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है म्यूज़िक में कर सकता है. और अगर उस सेम कॉलेज में वो फैसिलिटी नहीं हो, तो ये भी फैसिलिटी दी है कि आप दूसरे कॉलेज या दूसरी इंस्टीट्यूट में भी जाकर वो क्लासेस ले सकते हो. ओके. तो पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बनी है. अब मेरा 2 सवाल है. पहला सवाल, अगर स्कूल में वोकेशनल कोर्सेज या वोकेशनल कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कितने बच्चे एक्सपोज्ड है इससे? बिकॉज मुझे तो ऐसा दिखता है बाहर से या अपेरेंटली कि स्कूल के हर बच्चे जेई और नीट के पीछे ही भाग रहे हैं और उसी को ही ऑप्शन मानते हैं. 9th-10th से ही शुरू हो जाता है ये. मुझे वोकेशनल कोर्सेज की एग्जिस्टेंस समझ में नहीं आता है, नंबर 1. एंड नंबर 2, बच्चा जब ये इंजीनियरिंग, मेडिकल और ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़ के जब नॉर्मल कोर्सेज के लिए कॉलेज जाते हैं, उनका एक्चुअल लाइफ क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहली बात है सर, अभी ये इम्प्लीमेंटल स्टेज पे आया है स्कूल में धीरे धीरे लेवल टू लेवल वो स्टार्ट कर रहे हैं एनईपी. जैसे सिंस फ्रॉम अभी एडमिशन होता है 1st, 2nd, 3rd, देन 4th, 5th, जैसे एक जनरेशन के साथ स्टार्ट हो रहा है. अचानक तो वो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते बीच में. दूसरा 6-7 से स्टार्ट कर देते हैं. और पर अभी क्या है, हम लोगों ने ना स्टूडेंट को गाइड इस तरह से किया हुआ है कि करियर तो सिर्फ 3 ही होते हैं. True. बच्चों को हमको ये बताना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें, और हमको सबसे पहले रादर देन हमको ये सिखाना होगा नौकरी नहीं करना है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें नौकरी देने वाला बनना है. पहले तो ये माइंडसेट चेंज करवाएं. जिस दिन ये माइंडसेट चेंज होगा तो नो डाउट उनकी स्किल कोर्सेज में उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वोकेशनल कोर्सेज में उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा. उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप हो पाता है? क्योंकि उन्हें मालूम है फंड, उनको सबसे पहले बच्चों को क्या लगता है, कोई भी नया बिजनेस करें तो पैसा चाहिए. मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को लास्ट ईयर मेरे कॉलेज में बुलाया था. मैंने 15 दिन का स्टार्टअप
इंटर्नशिप करवाई और उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया और उसमें मैंने सब मतलब वेरिड काइंड ऑफ लेक्चर्स करवाए, जिसमें स्टूडेंट को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने ये भी बताया कि मैंने मेरा करियर 0 रुपीज़ से स्टार्ट किया, किसी ने 500 से किया और किसी ने पेरेंट्स के चांटे खाकर किया, पैसा नहीं था। तो बोले ये मत सोचो कि पैसा होगा तो ही बिजनेस होगा, क्योंकि हम लोग क्या है, बहुत अच्छे स्कूल में एक बच्चों को घर पे एसी दे रखा है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठा है, तो बच्चा यही सोचता है कि मेरा सबसे पहले तो ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस में एसी होना चाहिए, एक सर्वेंट होना चाहिए जो पानी पिलाए। वो पहले हमने ना सारे खर्चे तय कर लेता है, वो इनकम कहाँ से आएगी ना वो सोचता ही नहीं है। वेरी ट्रू। हमको पहले ये गाइड करना है, और ये गाइडेंस हम कब से दे सकते हैं, क्लास मतलब 2nd 3rd से बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि अर्न समथिंग। अब आप बोलेंगे क्लास 3rd का बच्चा क्या अर्न करेगा? सर ही कैन अर्न सो मेनी थिंग्स। बेटा कुछ अर्न करके बताओ, क्या करो? पड़ोस वाली आंटी को बोलो आपके गार्डन में पानी डाल दूं, दादाजी को बोलो रोड क्रॉस करवा दूं। अर्न समथिंग। बच्चे में कुछ करने की, अपने फोकस करा, बच्चा डेवलप कर रहा है अपनी इनसाइट। धीरे धीरे उनका स्टेज बढ़ेगा, आप उनको स्टेजेस के हिसाब से चीजें बताएं। घर पर आप ये मोबाइल दे के रखते हैं ना, रादर देन गिव समथिंग रॉ चीजें, एक स्ट्रॉ दे दिया, एक टेप दे दिया, एक वाटर बॉटल दे दी खाली बिस्लरी के, क्रिएट समथिंग यूजफुल। दो बच्चों को 2 घंटा कुछ अच्छा बना, और आप भी बैठो साथ में, बच्चा क्या सोच रहा है, किस दिशा में, सो थोड़ा सा गाइड करो। अगर वो कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करता है, वाओ दैट्स वंडरफुल। मतलब बच्चे ने ये सीख लिया कि कौन सी चीज़ से कैसे बनाते हैं, तो उसका दिमाग अब ये कुछ भी चीज़ देखेगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन पबजी, फ्री फायर, जो कुछ भी नहीं देते। हम अपने टाइम को बचाने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। यस यस यस। क्यों? मैं बोलती हूँ आप आर्ट वर्क लाके रखो, क्रेयॉन्स लाके रखो, आप पेपर्स लाके रखो, ऑरिगेमी। तो बच्चा गंदा करेगा ना, ठीक है 2 घंटे कर लिया, आप फिर सिखाओ, बेटा ये कर रहा है ना, इसको अपन आधे घंटे में उठाएंगे। शुरू में आप हेल्प करो, 3 दिन करो, 2 दिन करो, हेल्प करने की क्वांटिटी आपकी कम करते जाओ, 7वें दिन से वो खुद उठाने लग जाएगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा पेरेंट्स को है। मतलब मैं फिर बोलूंगी सर ये पेरेंट्स और स्कूल मैं बोल रही हूँ कि आप रादर देन टीचिंग देम, आप सिखाएं, स्विमिंग सिखाएं, पर वीक में 1 घंटा बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप जैसी स्टेज वाइज कैपेसिटी डेवलप करने के लिए एक अलग से सेशन लीजिए। फील कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप और जो ये स्टार्टअप है, ये थोड़ा सा फैशनेबल हो गया है, मतलब ये फैशन के तरीके से यूज किया जा रहा है ये सारे शब्द को, कि वहाँ पे ये करवाया जाता है, सो पीपल आर सीइंग इनटू दैट लेवल रादर देन गेटिंग इनटू द हार्ड फैक्ट कि एक्चुअली जो जर्नी है ये बहुत टफ जर्नी है, एंड यू नीड टू बी रोबस्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। You cannot be a pampered kid to be an entrepreneur. Entrepreneur एक बहुत टफ जर्नी है। सर जो स्कूल करवाते हैं वो तो यही सिखाते हैं कि आप बेसिक ये जर्नी है, और जब भी आप सिखाएं तो मैं तो हर बंदे को यही बोलूँगी, पेरेंट्स को भी, स्कूल्स को भी, एक ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब ये क्वालिटी बच्चों के अंदर डेवलप करें तो ये बोलें कि बेटा फंड नहीं रहेगा, जो भी करना है ना विदाउट फंड करना रहेगा। अब विदाउट फंड कैसे करोगे? जिस दिन बच्चे के दिमाग में आ गया ना तो वो उसे एज अ फैशन यूज़ नहीं करेगा। इसमें मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल अच्छा और एक एग्जाम्पल ख़राब। आई वॉज हैविंग वन फ्रेंड जिनका एकदम बच्चा जब छोटा था, ही वॉज ऑन अ रेंटेड हाउस, तो बच्चा क्रेयॉन से ना दीवार पे ऐसे लिखते हैं, तो मकान मालिक आके कंप्लेन करते हैं कि हमारा दीवार ख़राब कर रहे हैं। तो माई फ्रेंड वॉज लाइक कि आपको जितना पैसा लगेगा पेंट के लिए आई विल पे, बट आई विल नॉट स्टॉप माई किड टू डूइंग दैट, क्योंकि उससे उसका हाथ सेट होता है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब ये हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं ना, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको पहले से पता होता है कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे हैं, मेरे पास बैकअप है, और जहाँ पे बच्चों को ये पता चल गया कि मेरे पास बैकअप है, उनका सीरियसनेस लेवल और एक ग्राउंड लेवल से तैयार होता हुआ बच्चे का सीरियसनेस के लेवल, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो बैक ऑफ द माइंड वाली जो चीज़ें हैं कि अगर फेल हो जाऊंगा तो संभालने वाला है, मुझे ये ऑप्शन वाली लाइफ, ये मेरी पर्सनल परसेप्शन है, मे बी आई कैन कंप्लीटली रॉन्ग, बट ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि यू शुड नॉट हैव ऑप्शन इन लाइफ। इफ़ यू हैव चूजिंग समथिंग, गो 100% इट। तुम्हारे पास ये एटीट्यूड होना चाहिए कि फेल हो गया तो क्या, खत्म। जहाँ आपको लगता है कि फेल हो गया कोई बात नहीं, ये तो है ही, वहाँ पे वो बंदे का सक्सेस रेशियो मेरे हिसाब से कम हो जाता है।
यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा करेक्शन बोलूँगी। जिनको पता है कि हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स है और ये हमारा सेट बिजनेस है, वो सब कभी एंटरप्रेन्योर बनते ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर वही बनता है। मैं आपको एक नॉर्मल बात बताती हूँ। जो बहुत फैंसी स्कूल से पढ़कर निकलते हैं ना, उनको जॉब की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आपने देखा होगा, वो कभी बहुत रेयर होते हैं जो आईआईटी या नीट और इसमें जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है पेरेंट्स का पैसा और बिजनेस। एग्जैक्टली। अधिकतर ये लोग क्रैक कौन करता है? जो बेचारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं। यूपीएससी क्रैक कौन करता है? जो बिल्कुल आपने देखा होगा, जो एकदम लो बैकग्राउंड के लोग होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मुझे ये अचीव करना है। तो ये अर्ज कहाँ से आती है? जब आपके पास कुछ लैकिंग होती है। तो जब आपके पास कोई लैकिंग होगी ना, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। और फेलियर तो हर चीज़ सक्सेस का बेसिक स्टेप है। जब तक नहीं छोड़ोगे सक्सेस मिलेगी ही नहीं। और जितने भी मैंने पर्सनल एंटरप्रेन्योर सुने, और मैंने स्टूडेंट्स को उन्हीं को सुनवाया, और जिनको अवार्ड्स बहुत मिले हुए हैं, बट जब वो अवार्ड्स के पीछे की कहानी सुनाते हैं ना, तो बच्चे की गूज बम्स आ जाते हैं कि नहीं, ये जो जहाँ आया है ना, इट वॉज नॉट सिंपल। उसने कई रातों को सोया नहीं है, कई बार खाना भी नहीं खाया है, तभी वो यहाँ पर आ पाया है। एंड यू नीड टू स्ट्रगल, यू नीड टू बी लाइक मोहम्मद गजनवी कहते हैं ना, 17 बार चढ़ाई किया मक्खी, वो उसको मकड़ी को, जाले को देखकर। यू नीड टू ट्राई एंड ट्राई, यू विल बी सक्सेसफुल। पर ट्राई ऐसा नहीं कि बस करे जा रहे हैं। हर फेलियर से एक लेसन लेकर ट्राई करें। आई हैव गॉट सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स इन माई लिस्ट जिन्होंने अपना थोड़ा सा डोमेन भी चेंज किया, पर उन्हें खुद अपना करना था। 3 बार एक डोमेन में करा, लगा कि सक्सेस नहीं मिल रही, नहीं आई नीड टू चेंज डोमेन, पर करूंगी तो अपना ही बिजनेस। और आज करोड़्स के टर्नओवर पर है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए, बट ये एक उनका एक कहते हैं ना विल पावर, एटीट्यूड है। एटीट्यूड। और अगर आपके पास बैकअप है तो ये विल पावर और एटीट्यूड आएगा ही क्योंकि आप बहुत ईज हो, करा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बिजनेस में चले जाएंगे। तो मैं बोला वो लोग एंटरप्रेन्योर बनते ही नहीं है सर, बनते ही नहीं है। अब फाइनली इतने विजडम के बाद 3 चीज़ें और पूछना चाहता हूँ आपसे। पहला चीज़ तो ये है कि पेरेंटिंग की बेसिक रूल क्या होना चाहिए, सो दैट आप एक रोबस्ट थॉट प्रोसेस बच्चे में डाल सके। उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो फाउंडेशन आपके घर से ही तैयार होना है। कोई स्कूल कुछ बदल नहीं सकता है, कोई कोचिंग सेंटर कुछ बदल नहीं सकता है। जो एटीट्यूड पहले दिन से अपब्रिंगिंग में आता है, वही एटीट्यूड जीवन भर रहता है साथ में। तो राइट एटीट्यूड के लिए हर पेरेंट्स को कौन से चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? मतलब दे नीड टू बी वेरी वेरी सीरियस ऑन दीज पैरामीटर्स। सम फ्यू पॉइंट्स आर देयर। यस प्लीज। नंबर 1, नो कहना आना चाहिए। बच्चे की लाइफ में ना सुनने की आदत होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, कभी बच्चे को कंपेयर ना करें। बच्चे की लाइफ में कोई शर्मा जी और शर्मा जी का बच्चा नहीं होना चाहिए। ओके। तीसरा, बच्चे की क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करो। हर बच्चा 95% नहीं ला सकता, बट हर बच्चे में कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी होती है। ट्राई टू एक्सप्लोर दैट क्वालिटी। चौथा, अपने बच्चे को कभी भी डराओ नहीं, उसको प्यार से समझाओ, असर्टिव वे में समझाओ, नेगेटिव वे में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, खाना खा ले नहीं तो बाबा आ जाएगा, बैठ जा नहीं तो पुलिस पकड़ जाएगी। ये चीज़ें बच्चों में डर क्रिएट कर देती है। डर क्रिएट मत करो। जिस दिन डर आ गया ना, बच्चा खुल ही नहीं पाएगा लाइफ में। ओके। जंगल का शेर बनाए, सर्कस का शेर नहीं। बच्चों को अपनी लड़ाई खुद लड़ने दें, बच्चों को अपने डिसीजंस खुद लेने दें, बच्चों को बताएं सही क्या है, गलत क्या है। कई बार मुझे पेरेंट्स बोलते हैं, मैडम आप इतनी बात कह देते हो, इतने इजीली बोल देते हो, बच्चा अल्कोहल लेने लग जाएगा, बच्चा स्मोक करने लग जाएगा, हम क्या करेंगे? मतलब आप कब तक पीछा करोगे? किस एज तक पीछा करोगे? अगर उसने कंज्यूम करनी है ना, तो करेगा ही करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि आप बोल दोगे अल्कोहल नहीं लेना, स्मोक नहीं करना। आपने बताया ही नहीं कि क्यों नहीं करना, आपने सिर्फ बोला नहीं करना है। तो बच्चों को क्यों नहीं करना, पेरेंट्स मना क्यों करते हैं? आई शुड ट्राई वंस। आप ये बताओ, देखो पीना है ना, पीना, पर पहली बार मेरे साथ, पर पिएगा, स्मोक करेगा तो देख ऐसा ऐसा होता है और ये होता है। इस एज तक आते आते ऐसा हो जाता है, एज इतनी कम हो जाती है, हमारी खर्चा इतना होता है इतनी एज तक, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी एज पे इफेक्ट होता है, बीमारियां आती है, उसका एक्सपेंडिचर। डिसीजन इज योर्स। आजकल तो बच्चे बहुत टेक सेवी हैं, आप वो गूगल भी कर सकते हैं। आप डिसीजन इज योर्स, इफ यू वांट टू डू, इट्स योर लाइफ।
यू टेक डिसीजन. खुला छोड़ो ना, कब तक पीछे रहोगे. नाउ इन माय सेकंड पॉइंट, बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए स्कूल के लिए कौन सी चीज़ें बेसिक होना ही चाहिए. जब कोई पेरेंट स्कूल डिसाइड करे तो ये 3-4 चीज़ें देखे, ये नहीं देखे कि एम्यूनिटीज़ क्या है या फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से या स्टेटस सिंबल ना बनाए स्कूल को. उनके बच्चे के हिसाब से जो एजुकेशन उनको देना चाहिए, जो वो एस्पायर करते हैं, वो कैसे सिलेक्ट करें. पहली बात तो मैं बोलूँगी कि आप अपनी बजट फ्रेंडली लें. ओवर बजटिंग वाले स्कूल में ना जाएं जो आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो. पहला पॉइंट. दूसरा, आप वहाँ देखें कि बच्चों के पढ़ाई का लेवल, उनकी बातचीत का लेवल, कम्युनिकेशन का स्टाइल, वो तो आपको दिख ही जाता है आप जाते हैं. वहाँ के टीचर्स का कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर देती है. जैसा प्रिंसिपल और टीचर्स का कम्युनिकेशन होगा वही चीज़ बच्चों में ट्रांसमिट होगी. वहाँ के बच्चे का अलुमनाई स्टेटस देख लीजिए, कहाँ और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं. तो दैट विल गाइड यू प्रॉपरली कि पर्टिकुलर स्कूल इज गुड और नॉट फॉर योर किड. ओके. नाउ वंस द किड रीच टू 11th स्टैंडर्ड, जब ये कोचिंग का रेस शुरू होता है, हाउ टू काउंसिल देम एंड हाउ टू गिव देम द राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन सो दैट दे शुड गो. क्योंकि वहाँ पे भी ये शर्मा जी आ जाते हैं. वहाँ तो सबसे ज़्यादा आते हैं. हाँ, तो वहाँ पे इनको कैसे गाइडेंस दें और कैसे इनको सही डायरेक्शन में जाए, डमी को अवॉइड करके. बिकॉज डमी, nobody should encourage this. Yes. But I don't know why people are. पेरेंट्स को सबसे पहले जब बच्चा बोलता है मुझे ये करना है या मुझे इस कोचिंग में जाना है, तो पहले आप भी बच्चे को असेस करें, उसका रिजल्ट अभी तक का जो है असेस करें, बच्चे को असेस करें और उसको बोले तू खुद सोच, तू कर पाएगा. इतना देर पढ़ना पड़ता है, इतना स्कोरिंग आना होता है, अभी तक अपना है, डिटर्मिन्ड हो, और अगर ये करना है तो बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. ये 2-3 साल में कर पाओगे? आप बच्चों को कुछ सेल्फ क्वेश्चंस दे दो, बच्चा खुद एनालिसिस करे. बोले नहीं कर पाओगे ना, कोई इश्यू नहीं है, यू कैन ऑप्ट अनदर. करिए. यस. बिकॉज इट हैपेंड इन माई फैमिली कि जो मेरा एक बड़ा वाला नेफ्यू है, मेरा ब्रदर सीए है, वो जैसे ही 11th पे आया, पापा मैं ले तो रहा हूँ कॉमर्स बट मैं सीए नहीं करूँगा, मुझसे लॉन्ग आवर्स की स्टडी नहीं होती. आई कैन नॉट सिट फॉर 6 to 7 or 8 hours and I cannot study this much long. I will do my MBA. मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर लूँगा बट मैं लंबे समय तक नहीं पढ़ सकता. इट्स ओके, क्लियर. वी नेवर प्रेशराइज हिम. ना उसने एक बार सीए का एंट्रेंस भी नहीं दिलवाया. हमने ये भी नहीं बोला तू एक बार एंट्रेंस तो देख ले, क्योंकि कई बार पेरेंट्स इतना ऑफ कर तो ये तो दे ले, भले मत जाना. हमने बोला ही नहीं. बोले ओके, इट्स योर लाइफ, टेक योर डिसीजन. ही इज डूइंग वेल, क्योंकि उसको था मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए, मैं 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकता. हाँ, मेरे को जब करना होगा मैं बहुत अच्छा करूँगा. नो डाउट वो जब वो MBA करने गया, मुंबई गया, तो उसने 9-9, 10-10 घंटे लॉन्ग आवर्स पूरे कॉलेज में बैठा, अपने असाइनमेंट्स भी बनाए, लेक्चर्स भी सुने 3-3 घंटे के, और सब कुछ करा, क्योंकि वो फोकस था ना कि मेरे पेरेंट्स ने मैंने जब जो चाहा करा, और मेरा एम ही है, नो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, तो मैं करूँगा. हमने उसे प्रेशराइज ही नहीं किया कि नहीं सीए का एग्ज़ाम तो दे ले, नहीं होगा तो चलेगा. पर ये चलेगा में ना, अब बच्चे ने एक बार फेलियर फेस कर लेता है ना, तो वो डीमोटिवेट तो हो जाता है. आपने तो बोल दिया चलेगा, बट बच्चा उस फेलियर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता. Thank you very much for these kind of wise thoughts of yours to be shared in our platform. I hope a lot of people will get benefited out of this, because these are few basic things that everybody should understand and everybody should consider at the initial and foundation for their kids. So thank you very, very much for sharing with us about it. And what was your experience in our platform? It was really wonderful, because I think कि आज मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं जो चाहती हूँ सोसाइटी को चेंज होना चाहिए, आज मैं अपनी बात एटलीस्ट पहुँचा पा रही हूँ. मैं नहीं मानती कि कितने लोग इससे इन्फ्लुएंस होंगे, नहीं होंगे, बट एटलीस्ट मैंने मेरी बात पहुँचाई. yes, मैंने अपना रोल प्ले करा. और अगर एक भी इसमें से चेंज हुआ तो ये अलग जल रही है ना. ये एक दिन जो हम चाहते हैं, हम लोग क्या है एक्चुअली अपने बच्चों को पता नहीं क्या बना रहे हैं, हम भी नहीं जानते हैं. मैं अगर किसी पेरेंट से पूछूंगी ना, तो वो भी बोलेगा वो करना चाहता है, लोग चाह रहे हैं, और उनका बेटा ने ऐसा करा तो मेरे बेटे को मैं USA भेजना चाह रहा हूँ. क्यों भेजना चाह रहा हूँ, दे डोंट नो. तो पहले मैं बस यही बोलूँगी कि पेरेंट्स प्लीज़, दिस इज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट, आप ये सोचो आप करना क्या चाहते हो और चाहते क्या हो लाइफ में. आप पहले खुद असेस करो,
फिर बच्चे को बोलो. And it was a wonderful experience here with you, Indranil, and it was quite thought provoking shoot over here. एंड आई मस्ट थैंक यू कि आपने इतना सोचा सोसाइटी के लिए. तो आप सबसे पहले तो आप ही हैं जो सोसाइटी के लिए इतना सोच रहे हैं. Thank you very, very much for giving us your time, ma'am. Thank you very much. So this was the podcast with Dr. Ira Bapna. I hope this podcast has given you a lot of insights regarding career, lot of insights regarding parenting and present educational system. How Dr. Ira Bapna started her journey from Ujjain, came to Indore and established herself in the biggest and the best possible manner, and the parenting, which is the most emotional ground for every single parent to get the child best kind of education and upbringing. I hope this podcast has given you a lot of insights regarding that. And please don't forget to give your comment on the comment section so that we can have understanding that where we are going right and where we have a scope of improvement. And again, in fine, I would like to request you to please subscribe this channel so that you can have all the updates from our end at the right moment, because through our podcast, we try to cover up different kind of individuals and we try to give you a lot of insights about different industries and different personalities. At the same time, I would like to request you to please subscribe our business news channel by the name of TSBP News, where we cover business news Monday to Friday by the name of Business Bites at 7 p.m. and Quick Bite at 9 p.m. Monday to Friday. So please subscribe our channel, The Spotlight Beyond Profession, as well as TSBP News. And thank you very much for watching the podcast till the end, and signing it off.